BOD who are not able to attend. Iyer sir, you have raised your hand. You want to say something? Or is it by mistake? Okay. Who? Yeah, Iyer I must sir, have you want to say something, Ramakrishna Iyer? Yeah, he's probably traveling to his home place. Yeah, that's fine. That's fine. No, RK, you can switch off a camera. Okay, friends, then we get on to the very first topic of the day, which is a very important one, especially for a club, which is like probably for the first time you will be having this kind of a thing where you can learn more about roles and responsibilities of your board of directors. So for that, we have with us Chief Coordinator Neha Nimbalkar. He's from Rotary Club of Thane Central, who she joined Rotary in 2004, and in the year 9-10 she was the president. She's basically into fashion designing. And so, welcome, Neha. Good to see you after the probably the third or the fourth one of my DOP. Fourth must be, yeah, third, fourth. All Yeah. you were there, right? Okay, good. Let's start. Yeah. Thank you, Ashish. Good evening, friends. So my today's topic is roles and responsibility of BOD. अब ये जो presentation है committee structure ये श्रीजित पुथन ने बनाया है, but I am referring to this PPT only. So today's agenda will be BOD, club committee structure, and then we will talk about 5 most important avenues: club administration, club image, public image, membership, service projects, and the Rotary Foundation. Friends, for any club, planning is most important. If our calendar is ready, then it will be very good for all the BOD, so that they can also plan out their presence for the events. The BOD must prepare for at least 3 months planning. It's not only president's job. ये याद रखे, नहीं तो हर साल फिर president मिलना मुश्किल हो जाता है. सबको मिलके करना है. So ideally, the whole year's calendar should be ready for the smooth running of the club. But if not possible, then make 3 months advance calendar. The governing body of a Rotary Club is its board of directors, consisting of, at a minimum level, the president, IPP, president-elect, club secretary, and treasurer. A club's board may have additional members such as the vice president, president nominee, sergeant-at-arms, and other directors. For new members, I would like to share the functions of the directors of the board. अभी हालांकि अपना नया ही क्लब है, मेरे ख्याल से सिर्फ प्रमोद जी और जो आईपीपी मिस्टर चौधरी है ये भली भांति जानते होंगे. फिर भी I would like to share with you the functions of directors of the board. The president presides at club and board meetings. The IPP serve as a director on the club board. The president-elect prepares for his year in office and serve as a director. The vice president presides at club and board meetings when president is absent. Then secretary keeps membership and attendance records. The treasurer oversees all funds and provides an accounting of them. The sergeant-at-arms maintain order in club meeting. A director attends club and board meetings and apprises the board about activities in his allocated areas. तो समय समय पर जो एक्टिविटी वो पर्टिकुलर डिरेक्टर उसका जो अवेन्यू है उसमें कर रहा है वो हर बोर्ड में अपडेट करना है उसे. Then there is a typical agenda of a board meeting. एजेंडा में ये सारी बातें होना बहुत जरूरी है तो ही आपकी बोर्ड मीटिंग अच्छे से चलेगी. Like meeting starts with welcoming the directors by the presidents. Then we read the minutes of the last BOD, getting it passed. We discuss financial positions of the club account and trust account, budget versus expenses against each other. We have to update about community service projects and events carried out since last board meeting. Also update about
new member induction or Neha, one exit of. Neha, Yes. 1 second. Your slides are not moving. I hope you're aware. या हाँ यही वाला है, यही वाला है, हाँ यही है. Yeah, so also update about new members induction or exit of any existing member. We have to update about the TRF collection, क्योंकि हमने कोई एक अगर बताया कि हम ये साल में 2000 देंगे, $4000 देंगे, तो अगर हर बीओडी में हम उसका अपडेट देते हैं तो वो अकाउंट रखना भी इजी हो जाएगा. Update about global grant and district grant if any. Discuss about projects and events planned for the current month and forward plan. And the last point is any other item with the permission of the chair. इसके अलावा जो yes. Sorry to interrupt you. After global grant and district grant, you said what did you say? Yeah, I said we have to update about global grant and district grant, and then discuss about projects and events planned for the current month and forward plan. मनोज, मैं तुमको ये वाला उसका जो राइटअप है मैं भेज दूंगी तुमको व्हाट्सएप पे. Okay, fine. Yeah. हाँ, मनोज है ना, मैंने देखा है बहुत पर्टिकुलर है. मैंने प्रीपेड्स में भी देखा है, फिर मैंने डीटीए में भी देखा है. मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो नहीं, बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं. तो ये हमारे बोर्ड में जो एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, और इसके बारे में डीएस शीरीष जो है वो हमें बताएंगे. तो लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जो साल शुरू होने के पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका स्मूथ हैंडओवर होना चाहिए, जैसे कि ऑल बैंक अकाउंट्स, फिर रिजोल्यूशन ऑफ चेंज ऑफ सिग्नेटरी ऑन क्लब लेटर हेड, क्लब के सब मिनट्स जो है वो लिखे होने चाहिए. ये इसके बारे में शिरीष आपको बताएंगे. हालांकि मैं अपने प्रेजेंटेशन में बताती हूँ, लेकिन मेरे बाद शिरीष और अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे. So we have 5 important avenues: club administration, public image, membership, service projects, and Rotary Foundation. ये 5 के डायरेक्टर तो हमारे बीओडी में होते ही है. You can also have a strategic planning committee that is optional, depends on the size of the club. देखो कि कोई क्लब में 100 मेंबर है, किसी में 40 है, किसी में 50 है. तो अपने क्लब के साइज के हिसाब से हमें ये सोचना है कि हम स्ट्रेटेजिक कमिटी रखें या एडवाइजरी का कोई एक बोर्ड रखे. ये हमारे पे निर्भर करता है. ये जो 5 avenues है, so I will be elaborating on each avenue. ये कमिटी चेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारों के लिए है. जो 5 avenues के बारे में हम बात करेंगे वो 5 डायरेक्टर या फिर सभी डायरेक्टर्स के लिए ये है कि हम जब बोर्ड में डायरेक्टर है तो हमें क्या करना है, हाउ दिस वर्क्स. So you have to attend the DTA, work with the president elect to select committee members. ये हम लोग हमेशा CLP के लिए बोलते हैं कि अगर TRF का कोई एवेन्यू चेयर है तो प्रेसिडेंट इलेक्ट को पूछना है कि भाई तू अपने साल में कौन सा किसको बनाने वाला है TRF चेयर. तो वो अगर पहले साल वाले कमिटी में रहे तो वो भी ट्रेन हो जाएगा. तो इसीलिए कोई भी डायरेक्टर को अगले साल के मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट से बात करनी चाहिए. क्रिएट सब कमिटीज. अब ये ज्यादातर है ना जो लार्ज क्लब्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने एक 12 या 15 लोगों का बोर्ड बना लिया. जो है ना 60-70 लोग होते हैं वो एक सब कमिटीज भी बना लेते हैं क्योंकि उनके पास इतने मेंबर्स है. तो TRF में उनकी सब कमिटी में और 4-6 लोग होंगे या मेंबरशिप में और 4-6 लोग होंगे, कम्युनिटी सर्विस में होंगे. उसी तरह जब हम बीओडी में मिलते हैं तो तभी तो हम डिस्कशन करते ही है, लेकिन ये जो कमिटी है वो आपस में मिलकर भी अपनी एक्टिविटीज के लिए प्लान कर सकते हैं और तभी ही अपने कमिटी के गोल जो उन्होंने सेट किए हैं उसे मॉनिटर कर सकते हैं. और उसका जो बजट होगा वो भी कैसे उसको करना है, क्लब के साथ भी बैठ के बात करनी है कि
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का बजट क्या होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए तो आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी से बात कर सकते हैं, और जो आपने काम किया है उसका रिपोर्ट आपको कमेटी को देना है। मैं इसी में आपको बताना चाहूंगी कि जब क्लब एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मेरी एक क्लब एडमिनिस्ट्रेशन की स्लाइड मिस हो गई है, तो मैं यहीं पे आपको बताना चाहूंगी कि डीटीए अटेंड तो करना है, लेकिन एक मिनट। हाँ, तो हम जब क्लब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें क्लब सेक्रेटरी के साथ भी बैठ के लॉजिस्टिक्स और अटेंडेंस की बात करनी है। फिर क्लब ट्रेजरर के साथ मेंबरशिप ड्यूज, ये मैं पर्टिकुलरली क्लब एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर के लिए बोल रही हूँ कि यू हैव टू हेल्प द क्लब ट्रेजरर टू कलेक्ट द मेंबरशिप ड्यूज, यू हैव टू वर्क विथ क्लब्स अदर कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑन मल्टी क्लब एक्टिविटीज और इनिशिएटिव्स, वर्क विद द प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये तो सभी के लिए लागू है, सभी डायरेक्टर को प्रेसिडेंट इलेक्ट के साथ बैठ के अपनी कमेटी का मेंबर बनाने हैं। देन प्रोड्यूस क्लब कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग क्लब्स न्यूज़लेटर, जो हमारा बुलेटिन बनता है उसमें भी हमें मदद करनी है। एंड यू हैव टू रिपोर्ट कमिटी एक्टिविटीज एंड प्रोग्रेस टू द क्लब प्रेसिडेंट, द बीओडी एंड द एंटायर क्लब। जब हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो जो मेंबरशिप का डायरेक्टर है उसे पहले तो खुद को ये पता होना चाहिए कि जो हम रोटरी में 6 स्टेप्स हमने अपनाए हैं वो हमारे क्लब में उसी तरीके से मतलब काम हो रहा है कि नहीं। तो इसके मतलब एजुकेट मेंबर्स और न्यू मेंबर्स इंडक्शन एंड रिटेंशन, डायरेक्टर को पहले खुद को ये जानना है कि न्यू मेंबर्स का इंडक्शन कैसे करना है, और रिटेंशन के बारे में भी हमारे क्लब में बातें करनी चाहिए। कंडक्ट क्लासिफिकेशन सर्वे। अब ये क्लासिफिकेशन सर्वे क्या होता है? अब जैसे कि मेरा क्लासिफिकेशन है, मैं फैशन डिजाइनर हूँ तो मेरा क्लासिफिकेशन हो गया फैशन डिजाइनिंग। उसी तरह से समझो मनोज का या प्रमोद का जो क्लासिफिकेशन है जो हमारे पास हमारे क्लब में ऑलरेडी आ चुका है, हम उसे कहते हैं फील्ड और अनफील्ड क्लासिफिकेशन। तो फील्ड जो क्लासिफिकेशन है ना, ये चौधरी साहब के ओसीवी बुक में तो हमें मिल जाएगा, आईपीपी के ओसीवी बुक में उसकी एक लिस्ट लगाई हुई होती है, वो देख के हमें समझना है कि हमारे पास अनफील्ड क्लासिफिकेशन क्या है और उसके बारे में फिर हमें काम करना है। स्टडी मेंबर गेन, उसके बाद डेवलप प्लान फॉर मेंबर सेटिस्फेक्शन। अब ये मेंबर की सेटिस्फेक्शन का प्लान क्या होगा, तो हमें क्लब एडमिनिस्ट्रेशन का जो डायरेक्टर है या प्रेसिडेंट है उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि हम फैमिली नाइट्स कैसे अरेंज कर सकते हैं या अच्छे अच्छे स्पीकर्स कैसे ला सकते हैं ताकि मेंबर सेटिस्फाई हो और रिटेंशन बना रहे। स्पॉन्सर न्यू क्लब्स इन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मुझे पता है कि आपको अभी किसी ने बनाया है, आप 9 महीने का एक नया क्लब हो, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि पहले अपना पेट भरना चाहिए, अपने 40-50 मेंबर कर लो भाई, बाद में अगर नया क्लब बनाना है तो उसकी तरफ देखो। पब्लिक इमेज। So Neha, 1 minute. I have one question. When I'm talking to a lot of people on becoming members of our club, तो मेरे पास एक PowerPoint presentation नहीं है या how do I give a new person who does not know about Rotary by look आप है ना मनोज, आप हमारी मेंबरशिप की जो टीम है राजीव कर्णिक की, तो उनकी हेल्प ले सकते हो। वो अपनी कमेटी का एक बंदा भी आपको दे देगा, प्रेजेंटेशन भी देगा, और कैसे बात करनी है कैसे करना है वो सारी जानकारी मेंबरशिप की टीम आपको देंगी। देखो, डिस्ट्रिक्ट की टीम होती ही इसलिए है कि हमारे अभी हर साल तो नए डायरेक्टर आते हैं बोर्ड में, तो उनको कौन बताएगा कि काम कैसे करना है ना। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट की हर टीम है ना, मेंबरशिप है, टीआरएफ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, हेल्थ मेडिकल वाले जो है, तो हमें उनको कांटेक्ट करना चाहिए। वो अपने रेडीमेड प्रेजेंटेशन आपको देंगे
या फिर आपको जो चाहिए ना उसमें मदद करेंगे। ओके मनोज, पब्लिक इमेज के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्लब एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड क्लब। तो जब भी हम आउटसाइड, हम जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका राइटअप हम प्रिंट मीडिया में देते हैं या होर्डिंग में अपना वो एक चित्र लगाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव है या आई चेकअप कैंप है, तो वो तो हो गया। लेकिन विद इन क्लब हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? तो एक बात तो ये है, हमें बुलेटिन तो करना ही है, जिससे क्या होता है कि जो एक्टिविटीज हमारी चलती है ना क्लब में, उसके बारे में हमारे क्लब में सभी को जानकारी होती है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई बंदा एक प्रोजेक्ट को लीड करता है तो उसका राइटअप अगर बुलेटिन में आता है या आप उसका नाम मेंशन करते हो, उसका फोटो डालते हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो फील गुड वाला फैक्टर है ना, ये सभी में होना चाहिए, सभी क्लब मेंबर्स में। तो हर एक को लगेगा कि नहीं, मेरा भी तो फोटो आना चाहिए मेरे बुलेटिन में, फिर मैं भी अपने फैमिली को दिखा पाऊंगा। कोई भी कितना भी कहे कि मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ, लेकिन वो मन ही मन मतलब उसको बहुत वो सुखद क्षण होता है कि किसी का नाम अपने बुलेटिन में आ गया। सो देन यू हैव टू सपोर्ट वर्क ऑफ द मेंबरशिप कमिटी, लर्न व्हाट टू टॉक अबाउट रोटरी इन पब्लिक। आमतौर पे क्या होता है कि हम 4 बंदे अगर बात करते हैं और हमें कोई बात खटकती है तो हम खुलेआम बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई नॉन रोटेरियन मेंबर तो वहां पे मतलब खड़ा तो नहीं है और हमारी बातें तो नहीं सुनना है, क्योंकि हमारी इमेज तो हमें ही बनानी है। जैसे कि मैंने अभी देखा कि चौधरी साहब थोड़े नाराज थे शायद लास्ट ईयर के इसमें। अब ये बात ठीक है कि हम अपने अपने में ही बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम जब पब्लिक में बात करते हैं तो हमें ये जानना है कि क्या बात करें। सोशल मीडिया इफेक्टिवली यूज करनी है। हमें ये पता ही है कि आजकल के तो हम ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके फोटो डालने हमें। एक बहुत अच्छी बात अगर ये होगी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो और उसका वीडियो बना के आप सोशल मीडिया में डालते हो, वो एक स्टोरी बना के, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए, अभी ये प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट प्रोजेक्ट, हमारे पास कोई कोई तो ये कहता है कि हमें चलो हम ये प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर किसी डायरेक्टर ने ये प्रपोज भी किया लेकिन उसके बेनिफिशियरीज कौन है वो देखना चाहिए। ये वो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। और वो अगर हम प्रोजेक्ट कोई हाथ में लेते हैं तो उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन वो भी ठीक से हो जाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। आइडेंटिफाई सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स फॉर द क्लब। अब अपना तो बस 1 साल पुराना क्लब है, लेकिन जो एक 8-10 साल के है, 25 साल के क्लब है, वो हर साल एक अपना सिग्नेचर प्रोजेक्ट करते ही करते हैं। जैसे कि मेरा क्लब है ठाणे सेंट्रल, हम स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हर साल करते हैं। तो कभी ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिकेट का आयोजन करते हैं या फिर स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके स्पोर्ट्स लेते हैं। आप भी अगर उसी तरह से अपना एक कोई सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स अभी से ही ध्यान में रखकर करना शुरू कर देंगे तो आपके क्लब की भी एक आइडेंटिटी बनेगी और मुझे लगता है कि मेंबरशिप के लिए भी वो बहुत अच्छा रहेगा। यू कैन वर्क विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वॉलंटियर्स। हम और जो एनजीओज है उनका भी साथ लेके अपने काम कर सकते हैं। हम अपना फंड रेजिंग के प्रोग्राम्स उसके लिए रख सकते हैं। और इसके लिए हम अपने पब्लिक रिलेशन कमेटी की हेल्प लेके ये काम करेंगे। कोलैबोरेट विद अदर क्लब्स ऑन प्रोजेक्ट्स। अब ये कैसे होता है, जैसे कि मैंने कहा कि हम स्टेट लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए। अब ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि एक 8 से 10 मतलब डिस्ट्रिक्ट की टीम्स आती है और वो भी ब्लाइंड है। अब मेरे क्लब की स्ट्रेंथ भी हार्डली 40 लोगों की है और इतना सारा पैसा जमा करना या फिर सब सुविधाएं देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये करते हैं कि हमने 10 क्लब को बोला है कि हमारे साथ जुड़ जाओ। हम हर एक टीम को
वो क्लब का नाम देते हैं, जैसे कि हीरानंदानी एस्टेट या ठाणे अप टाउन या ठाणे मिड टाउन, तो 10 क्लब बन गए, हम उनसे पैसे भी ले लेते हैं और एक बड़ा सा 2 दिन का प्रोजेक्ट करते हैं। वो प्रोजेक्ट के लिए हमें उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, ट्रांसपोर्ट देखना होता है, यूनिफॉर्म देना होता है, क्रिकेट किट का आयोजन, ये सारी बातें हैं। तो हम उसकी सारों की एक कमेटी बनाते हैं और एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा प्रोजेक्ट हम करते हैं। मनोज, अगर तुम्हें कभी कोई सर्विस प्रोजेक्ट करना हो तो तुम जरूर मतलब मुझे फोन करके बता सकते हो और हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। अरे Okay. आगे नहीं जा रहे। हाँ, द रोटरी फाउंडेशन। देखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफएम जरूरी है। एफएम मतलब के फाइनेंस एंड मेंबरशिप। सो जो कोई टीआरएफ का अपना डायरेक्टर है, उसे हमेशा ना अपने मेंबर को इंस्पायर करते रहना चाहिए कि हमें टीआरएफ में कंट्रीब्यूशन क्यों करना है। और जैसे कि प्रमोद को तो पता ही होगा, ये जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें वापस मिलता है और हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट ग्रांट और ग्लोबल ग्रांट के थ्रू होते हैं। तो इसलिए हमें टीआरएफ को प्रमोट करना होता है। अब और अगर हमें डिस्ट्रिक्ट ग्रांट या ग्लोबल ग्रांट के लिए अप्लाई करना है तो हमें ग्रांट मैनेजमेंट सेमिनार में अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये अटेंड नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमारा ये साल का थीम है चलो मुरबाड। उसमें हम अगर सोचते हैं कि हम एक वाटर का प्रोजेक्ट करेंगे, अगर हम चेक डैम बनाना चाहते हैं या नल पानी योजना वहां पे किसी गांव को देना चाहते हैं, तो उसका खर्चा है करीब करीब 4.5 लाख रुपए। अब डिस्ट्रिक्ट ये इसके लिए आपको 30% डिस्ट्रिक्ट ग्रांट देगी, जो करीब करीब हो जाता है 1.5 लाख रुपया। तो आपको 3 लाख रुपए जमा करने हैं। और अब ये अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इसके बारे में बता सकते हो, एक अच्छे से अच्छा सा फ्लायर बना के। और ना मतलब इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अपने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी हमें मदद जरूर करते हैं। और उससे भी अगर हम 1-1.5 लाख रुपए जमा कर सके तो अपने क्लब का और 1-1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन दे के हम 4.5 लाख का एक बहुत बढ़िया सा वाटर का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट करके हमें खुद को भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने किसी एक गांव के लिए नल पानी योजना का आयोजन किया या हमने चेक डैम बनाया। तो डिस्ट्रिक्ट ग्रांट और ग्लोबल ग्रांट के थ्रू तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर ही सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया आपको। प्रेसिडेंट मनोज से मैं कहूंगी कि अगर तुम्हें और भी कोई जानकारी चाहिए तो तुम जरूर मुझे कॉल कर सकते हो। एंड दिस इज मेरे यहाँ से अब मतलब मेरा प्रेजेंटेशन अब खत्म हो गया। सो थैंक यू सो मच नवी मुंबई सेंट्रल एंड थैंक यू आशीष जैन। Yeah, thank you, Neha ji. It was a wonderful presentation from your end. It was very eye-opening and it was much more very clear. A lot of my things are clear. Yes, I do have some questions. Probably I'll connect with you separately on that. Yeah, thank you. Thank you, Neha. If somebody wants to take up 1 or 2 small questions, they can take up. I think it should not be a problem. Thank you, Ashish. 1 or 2 questions which I want to clear for my club. Yeah. Maybe I know the answer, but maybe I won't be perfect in that. So thank you, Neha ji. Numbers पे मत जाइएगा कि कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया। ये बहुत ही नया क्लब है और ये सेंसेक्स की तरह बहुत गोते खाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर गोते खाएगा। तो 2-4 साल लगेंगे इसको स्टेबल होने में। फिर अपने आप जब रोटरी इनके अंदर चली जाएगी तो ये नंबर्स अपने आप बढ़ेंगे। जरूर, तो हम बिल्कुल निराश नहीं है और आप लोग भी निराश मत होइएगा नंबर्स को देख के। पहली चीज। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता था आपसे कि हमारे पास कोई ऐसा रिटन मटेरियल अवेलेबल है हर एक डायरेक्टर्स के बारे में
उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जैसे क्लब एडमिन हो गया, पब्लिक क्या कहते हैं इमेज का जो डायरेक्टर है हाँ। वो हो गया, या सर्विस, तो हर एक के बारे में अगर हमारे पास रिटन मटेरियल अवेलेबल हो तो हम उसको जो है वो कंटेंट हम भेज सकते हैं कि दिस इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द ईयर यू Yes. हैव. It So is more that like a content job description. It's a job description, correct? with the job description, that content you can send it to the Mano, so we can edit or modify as per our Yes. club need, or we can add it more in that as per our club need, and we can send it to each and everyone. This we are lacking. And second is this, that is there any standard process for the leadership, club leadership? Like we have adopted the ladder leadership. Like the person who is a treasurer here, next year he'll be secretary, after that he'll be president elect, after that he will be the president. So that concept we are going to follow in our club. Good. Earlier in Yes. which club I was there for last 20 years in Hillside also, that same concept we were following, but I don't think so there is any standard process in Rotary that every club should follow that. So any other process is also there in your knowledge that leadership ke liye, or because I have seen that many club randomly select that okay you will be the president or X will be the vice president, that way. हमने मेरे ख्याल से तो मतलब ऐसी कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन अगर लैडर सिस्टम में जाते हैं तो बहुत अच्छा है ना. हाँ शिरीष. हाँ. Can I answer this question? Yes, sure. Thanks so Yes, much. Shirish. You have asked very good questions. First of all, Rotary में एक rules है, every member of the club who is 1 year old have the right to declare or to show his interest as a club president. Whatever the maximum club, जो आपने बोला ना लीडरशिप के हिसाब से चलते हैं, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये होना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक रूल के हिसाब से एवरी मेंबर हैज अ राइट टू नॉमिनेट, टू फाइल हिज नॉमिनेशन. अभी जैसे बोलते हैं ना, आपकी क्लब में लीडरशिप का ये है, लीडरशिप का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर क्लब में होता है क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट जो बनने वाला है उसको अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के मेंबर का जो मैक्सिमम होता है, क्लब एडमिनिस्ट्रेशन, टीआरएफ डायरेक्टर, मेंबरशिप डायरेक्टर और ट्रेजरर एंड लास्ट सेक्रेटरी, अगर ये सब पूरा करता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है. आपका क्लब नया है, लेकिन कुछ जो सेटल्ड क्लब है वो क्लब में ऐसी प्रोसीजर है कि एनीबडी हैज अ राइट टू फाइल हिज नॉमिनेशन. That's true. That's why we know that okay अगले 4 साल में कौन प्रेसिडेंट होने वाला है, सो हमको वो आइडिया रहता है, प्रेसिडेंट भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करता है, तो उसको सारे चलेगा. ये तुम्हारे बायलॉज में लिखना बहुत जरूरी. क्लब बायलॉज में हमने वो चीज क्लब बायलॉज में वो मेंशन करना बहुत जरूरी है. इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है जी कि क्लब बायलॉज में क्या हमको परसेंटेज ऑफ डायरेक्टर फिक्स करना पड़ता है कि मेंबरशिप सपोज हमारी 40 है तो हमको इतना परसेंटेज ही रखना चाहिए, और इट इज ओपन लाइक you can make, because I have seen there are clubs who are making 100% directorship. हाँ, अभी उसमें क्लियरली लिखना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, कौन से डायरेक्टर्स को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड करते हो, ये मेंशन करना क्लब बॉयलर्स में बहुत जरूरी. अभी कुछ क्लब में सार्जेंट एट आर्म्स होता है, वो क्लब ऑफिशियल होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 थिंग्स इन द बोर्ड, वन इज क्लब ऑफिशियल, अनदर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लब ऑफिशियल्स को भी वोटिंग राइट है या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोटिंग राइट है, ये मेंशन आपके क्लब बायलॉज में करना बहुत जरूरी. ओके, सो दैट वी हैव मेंशनड. कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, वो पीले जो पेज होते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं कि एक होता है, एक का व्हाइट होता है, प्रोटीन होता है, अंदर का जो येलो रहता है वो बहुत हेल्दी होता है. वैसा ही अपना अगर एमओपी पढ़ोगे तो जुना वाला, नया वाला नहीं, नए वाले सब व्हाइट है. प्रमोद को मालूम है, इसके लिए बता रहा हूँ कि जो येलो वाले है ना, जैसे क्लब कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्लब के इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको किसको कंसीडर किया जाएगा. उसके अलावा अगर आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है तो योर क्लब हैज अथॉरिटी टू डू दैट. नहीं, लेकिन शिरीष जी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको एक एक्चुअली मेरा अगला जो लेक्चर है ना, तो पहले ये नया क्लब है, आशीष ने मुझे बताया था कि 7 महीना पुराना क्लब है,
तो तू इसके ऊपर जरा बात करेगा तो जरा यानी ये चीज तो मैं जरूर बताऊंगा। नहीं शिरीष जी, मेरा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि देयर इज एनी, मतलब जो प्रमोद जी ने पूछा मैं उसी चीज को ऑलमोस्ट रिपीट ही कर रहा हूँ कि देयर इज एनी परसेंटेज कि इतना परसेंटेज लोग ही उसमें एज ए बीओडी में मेंबर हो सकते हैं, पहली चीज। और जब अपन देखते हैं, अभी मैं पिछले 2015 से मैं रोटरी में और 2016 से मैं बोर्ड ऑफ बीओडी में मेंबर भी रहा हूँ। तो हर साल जो है मैंने ये नोट किया है कि जो ठीक है कुछ पोर्टफोलियो कॉमन होते हैं, बाद में सब बीजी जितने आते हैं सबके अपने अपने प्रोग्राम्स रहते हैं, उस हिसाब से वो चेंज हो जाता है। अब जैसे लास्ट ईयर था सर्विस 2020 वीक, उसके पहले हमने नहीं सुना था सर्विस 2020 वीक फॉर एग्जाम्पल। तो अभी ये सारी चीजों को कैसे अपन एड्रेस करेंगे। और दूसरा ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्लब है, तो हमारा क्लब 7 मंथ्स ओल्ड क्लब है, लेकिन अब 7 मंथ ओल्ड क्लब होने के बाद में भी अगर 29 मेंबर्स हैं तो उसका कितना परसेंटेज बीओडी में जाना चाहिए, और बाकी के लोगों को हम किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं, क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन है डिस्ट्रिक्ट के पास में? सुनो, बेसिक तुमको बताता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोले तो क्लब ऑफिशियल्स जो जाने जाते हैं, उसमें कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, क्लब सेक्रेटरी, क्लब ट्रेजरर, सार्जेंट आर्म्स एंड अगर तुम्हारा आईपीपी है उसको अगर बोर्ड डायरेक्टरशिप नहीं दिया है तो वो वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये तुम्हारे क्लब ऑफिशियल्स हो 6। अभी उसके बावजूद तुमको अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो बेसिक क्या है, 5 लोग मेन है, दैट इज 1 क्लब एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर है। सेकंड इज सीआरएफ, थर्ड इज पीआर, फोर्थ इज यूथ, फिफ्थ इज कम्युनिटी सर्विस, सिक्स्थ इज मेंबरशिप एंड 7 कंपल्सन। तो ये 7 और 6 कितना हो गया? तो मिनिमम 13 तो आपको चाहिए। 13 सी परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, टू बी फ्रैंक। जो बेसिक लगने वाली चीज है ना, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये बेसिक पिलर्स है रोटरी के, क्लब चलाने के लिए जरूरी है। अगर वो आप इतना कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बावजूद बड़ा क्लब हो जाता है आपका, फ्यूचर में 50-100 लोग हो जाएंगे, उस टाइम पे आपको स्कोप है कि आप 20 से 22 ले सकते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि 2020 में ये थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये आ गया, उसको मेरे को ऐड करना पड़ा, उसको चेयरमैन करके लो ना। ये तो डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। नहीं मेरे टाइम पे शिरीष जी मेरे टाइम पे मैंने वही किया था। जो हमारे 29 मेंबर्स थे, 29-30 मेंबर्स थे, तो बीओडी बनाने के बाद में हमने उनको चेयरपर्सन ही बनाया था, कमेटी फॉर्म करके, और हर कमेटी का चेयरपर्सन उनको मतलब कुछ ना कुछ अथॉरिटी डेलीगेट की थी। ये है बराबर। और बेसिक अगर आपका क्लब नया है ना, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ बोलिए प्रमोद। नेहा जी, आपसे एक सवाल था, बड़ा फनी सवाल है, बड़ा फनी सवाल है, बोलिए ना। लेकिन जनरली यू विल फाइंड दैट सच थिंग इज हैपनिंग विद एवरी क्लब। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट हम डायरेक्टर्स बना देते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को खुद पता नहीं होता है कि उनका एवेन्यू क्या है, और जब ओसीबी आती है तब हम उनको एक पेपर में लिख के दिया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की, भाई आप फला चीज के डायरेक्टर थे और आपके डायरेक्टरशिप में आपके एवेन्यू में ये काम हुए हैं। सो दिस इज हैपनिंग, this happened in my previous club also, this is happening in many more other club I have seen. How to address this issue कि उनको कंटिन्यूअसली कैसे उनके दिमाग में रोज, जैसे मैं सुबह 4 लाइनें भेज देता हूँ सबको, तो हो सकता है 10 लोगों में से 4 लोगों को तो मालूम चलता होगा कि चलो प्रमोद मिश्रा ने कुछ भेजा है। उसी तरह से उनके दिमाग में कंटिन्यूअसली कैसे चीज हैमर की जाए कि यू आर डायरेक्टरशिप ऑफ मेंबर्स, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम टीआरएफ के डायरेक्टर, कम से कम उतना तो उसको याद हो जाए कि हाँ मैं डायरेक्टर हूँ पर्टिकुलर। देखिए, मुझे 1-2 चीजें बतानी है कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि जो मेंबरशिप का है, टीआरएफ का है, जो पीआर का डायरेक्टर है, इनको पहले खुद समझना है कि उन्हें उसमें कैसे काम करना है। ओके, तो आप एक 4 लाइन रोज भेजने से वो बंदे को बिठा और उनको बताओ कि ये तुम्हें करना है। मैंने ना तुम अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, देखो मैंने अपना एक
प्रेजेंटेशन का कुछ भाग आपको अभी भेजा है कि हर एक कमिटी में क्या होता है। मेरे पास मनोज का नंबर मिला नहीं तो मैंने आपको भेजा। दूसरी बात, अगर हम हर बीओडी में हर एक डायरेक्टर को 1-2 मिनट दे और कहे कि ये महीने में तुमने क्या किया उसके बारे में बीओडी को बताओ, तो अच्छा रहेगा ना कि उसको भी अपनी एक जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी जो है वो समझेगी, उसे पता है कि हमें अपडेट्स देने हैं, तो वो अपनी तैयारी भी करके आएगा और धीरे धीरे उसको अपना काम भी समझ आएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट का अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो हर महीने उसको वो है कि मुझे बताना है, मेंबरशिप वाले को ये बताना है कि कितने मेंबर्स अभी है या हम नए ऐड करने जा रहे हैं। Exactly what you are saying. Exactly what you are saying. We are lacking on the same place. जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, लेकिन क्लब लेवल पे कोई भी रिव्यू मीटिंग नहीं होती है। तो we should have रिव्यू मीटिंग also along with the BOD. We should have always the review meeting कि आपने क्या क्या किया है, किस किस वेन्यू के नहीं अंदर। प्रमोद, आपको पता है रोट्रैक जो हमारा काम करता है ना, उनके मीटिंग में प्रेसिडेंट मीटिंग शुरू करने के बाद हर एक डायरेक्टर जो वो महीने में उसने काम किया है ना, वो आके 2 मिनट सामने हर मीटिंग में आके बताता है। It's a very good But it practice. is not Rotary. We should है make it ना practice आशीष, with the Rotary also. हमें लगता है एक्चुअली हमें वो फॉलो करना चाहिए उनका वो। प्रमोद जी, We should also follow that thing. I have seen हाँ। because outgoing president जो है रिपोर्ट नहीं देता, क्लब सेक्रेटरी उनका रिपोर्ट देता है। So that is a very nice thing. In fact, we should follow. मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्लब में हर बीओडी में ये फॉलो करें कि किस डायरेक्टर ने अपनी एवेन्यू में कौन कौन सा काम किया है, तो एटलीस्ट थोड़ा उनको टेंशन रहेगी उस चीज को लेके। अदरवाइज वो खाली बीओडी एंजॉय करते हैं, बीओडी को। और अभी अपना नया क्लब है ना प्रमोद, नया क्लब है तो अभी से ही अच्छी आदतें डालना जरूरी है, तो वैसे मोल्ड होता जाएगा। तो हर एक को अपनी एक जिम्मेदारी भी समझ आएगी और हर एक ने उसका अपना क्रेडिट भी लो ना, वो काम करो और उसका क्रेडिट भी लो। प्रमोद जी, इसको अच्छा नहीं लगता है मैं ये आपको एक मतलब बहुत करना। अच्छा बताऊं, इस साल हमारे क्लब में जोश ईयर में हमारा जो प्रेसिडेंट था पुरुषोत्तम कुमार, उसने ही वाज वेरी क्लियर, बोला कि मैं बोर्ड में जाके रिप्लाई नहीं करूंगा डायरेक्टर्स को कि क्या काम हो रहा है। उसने बोला कि मैं आपको आप लोगों से पूछूंगा। तो उसने मुझको पहले से बोल के रहा था, एज ए क्लब सेक्रेटरी अपना एजेंडा फॉर द बीओडी मीटिंग इज पक्का, that you will always say update from director. The director used to come and tell us आपने अपने एरिया में क्या किया है या what is your plan for the next year. हाँ, वैसे ही होना चाहिए और क्या। I think आपने क्लासिफिकेशन की बात की मैडम, आपने क्लासिफिकेशन, एक सेकंड आशीष जी बस। हाँ बोलिए। क्लासिफिकेशन की बात की कि फील्ड एंड अनफील्ड क्लासिफिकेशन, हाँ वहां पर भी कोई कैप है कि एक क्लासिफिकेशन से 2 या 4 या 10 आ सकते हैं, या वहां पर पहले तो कैप था, आई नो, अभी वो कैप कितना खुला है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। There is no cap. There is no cap. Nothing There to is no don't worry. cap. फिर उसका फील्ड एंड अनफील्ड का मतलब क्या रह जाता है? नहीं प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिक क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल अभी नहीं रहा। अच्छा ओके, and number of person can come from any classification. But however, for your own good, I would say not more than 10% of your total strength should be from any one classification. Definitely, otherwise it creates a problem. Yeah, बस ये अपना सेल्फ रेगुलेटरी बात है, बट अदरवाइज यूनिक क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल आज रोटरी में फॉलो नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल। In fact, nowadays we are encouraging people to open clubs with the same classification, right? Yes. Doctors हाँ, का वही ना, club, golfers हाँ, का club, CA we have वाला, a golf डॉक्टर club. वाला क्लब। Yes. हाँ, Yeah. Of course, those are cost-based clubs. There is a slight difference. Yeah. They may be of different classifications, but they are got some common interest. Common. और दूसरा उसमें एक और चीज है ना सर, I think Ashish, one second, Vilas ji, Ashish, we are running out of time. Yes, we are running out of time. और आशीष मैं लीव करूंगी, हमें दूसरे इंस्टॉलेशन Okay. See you. Thank you. Thank you, Manoj. Thank you. Very good discussion. नेहा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। आप बोलिए। जो आपने बोला था ना कि जैसे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स और वो 7 मंथ में हम लोगों ने एटलीस्ट 3 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हमारे डिफाइन भी कर दिए हैं और उस पे काम चल रहा है। ऑलरेडी वी हैव अडॉप्टेड अ विलेज। अच्छा, और उसके बाद में लिटरेसी पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कहाँ पर वो? नहीं, लिटरेसी पे हम लोग जो है जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या इस टाइप के जो क्लासेस है बच्चों की। विलेज कौन सा अडॉप्ट किया है? विलेज अडॉप्ट हमारा हुआ है करजत के पास में।
अच्छा, रामिनी, हाँ तो वो विलास ड्राइवर चले भी गए थे ले उधर। विलास, I want to धामनी भी ले correct, जाते। विराज जी विलास अब जी, I आगे want to बढ़ते हैं, correct, नहीं तो तो हमारा 7 month नहीं 9 month हो गया। मैं request all members of member center. This is a direct orientation program with a schedule. yeah, please, yeah. या नो इशू, We can speak about our projects for the Very entire interesting next 6 discussion months if we are you having, want. but we'll have डेफिनेटली it डेफिनेटली, आई एग्री, only when it is sponsored by Vilas Thank you, Neha. in a nice Thank you. way. तो हम लोग बैठेंगे उसमें, सही है ना विराज? Bye-bye. So let us या thank नो you, इशू। Neha. We allow you to leave. Oh, she has already left. Fine. So so I would request Siri ji to come in. He is our district secretary for our club also. He is our district secretary. He was a president for Rotary Club Thane Hills in the year 15-16. And the smile logo that you see it on your T-shirt, that's been designed by Sirish. Yeah, Sharath, you can. Yeah. Excellent. Yes, yeah. And one thing I can tell you about Sirish, he's a very hardworking and a very fun-loving guy. मतलब एकदम work hard, party hard. So Sirish, over to you, and you will be speaking on club administration. Thank you, Ashish. Thank you. मनोज, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैं उसके यानी मेरा जो आपके साथ डिस्कशन टाइप करना चाहता हूँ, आई वांट टू नो कि हु इज डायरेक्टर और उसका बेसिक पोर्टफोलियो क्या है। अगर फटाफट बता देंगे। मनोज, आई नो यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। रामाकृष्णन। Yeah, so we have Hello, director. I'm the treasurer. He's a I'm treasurer. the treasurer of the club. RK. प्रमोद जी। I am Sergeant and I'm sir. अरे क्या बात है, आप राजा साहब हो। Vilas ji will be यस विलास। हाँ सर, मैं IPCP हूँ, इमीडिएट पास्ट चार्टर प्रेसिडेंट। नया कोड जनरेट किया है। आशा। नहीं, अदर देन थोड़ा सा यार वीडियो चालू करके एक फन, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन कुछ बात कर दे यार अच्छी तरह से। मैंने आशा ये डेजिग्नेशन इन्होंने मुझे दिया है, प्रमोद जी ने हमारे। अच्छा, ठीक है। जैसे हमारे ये बात चालू हुई थी शुरू में, जैसा आपने नेहा को पूछा था कि ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि प्रोसेस क्या होती है। आपका क्लब 7 महीने पहले का है, तो शुरुआत जो फाउंडेशन हम बोलते हैं, तो यू शुड लेट अ गुड फाउंडेशन विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज अ गुड फाउंडेशन? पहला सबसे बड़ा आता है कि आपने आपका क्लब बनाया है, आपके क्लब बायलॉज आपने बनाए हैं, बनाए होगे प्रमोद? यस बनाया है ना? तो बायलॉज Yes, में yes. आप देखिए, किसी को दिखाइए और उसमें आप लोगों को जो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्लब क्या करते हैं, ये क्लब का बायलॉज का एक कॉपी लेके आए, चलो यार बना देते हैं, उसके ऊपर से वैसे बना देते हैं। लेकिन व्हाट इज नहीं, हमने योर, करेक्शन किया है। यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्या बोले? क्लब बायलॉज है ना, ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ने और समझने की जरूरत सभी क्लब को है। जैसा ये थोड़ी देर पहले बात चल रहा था, क्लासिफाइड एंड अनक्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन। अनक्लासिफाइड क्या होता है मालूम है? उसी के टाइम पे, यानी बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, एक पेपर है अनफील्ड क्लासिफिकेशन। क्या करते यार, तेरे क्लब का है ना, वो लास्ट ईयर का आईपीपी का निकाल के लगा देते, हालांकि उसका एक क्लासिफिकेशन है ना, वो फील्ड हो गया है, लेकिन वही जेरोक्स वो लोग उसी में लगाते। नंबर 1 एक समझ के लो कि आपको आपका क्लब बायलॉज ये अच्छी तरह बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें आपको ये लिखना है कि आपका बोर्ड जो है उसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, कौन कौन क्लब ऑफिशियल्स रहेंगे। जैसे सर्जेंट आर्म्स, उसको आप बोर्ड में कंसीडर करते हो कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी। आप मुझे एक बात बताइए प्रमोद जी, आपसे मैं बात, यानी आपको पता है तो मैं बाकी लोगों को पूछना चाहूंगा कि सार्जेंट एंड आर्म्स का पोस्ट कौन फिल करता है? बोर्ड में सार्जेंट आर्म्स दिया जाता है, जैसे प्रमोद जी को आपने लिया है, वो एज ए अथॉरिटी टू फिल दैट पोस्ट। किसी को पता है? आशीष, कौन भरते हैं बताइए।
साजन, आशीष। ये जो पोस्ट है ना, ये कभी होती है जैसा आपका एनुअल मीटिंग होता है जिसमें आपका ऑफिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्ट होता है। जनरली अभी आपका क्लब नया है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसने, जैसा मनोज जी ने डिसाइड किया होगा, या 4-5 लोग आप बैठे होंगे कि ये भाई ये क्लब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर बनेगा, ये टीआरएफ का बनेगा, ये मेंबरशिप का बनेगा, आपने डिसाइड किया, वो हिसाब से एक फॉर्म भर के उसके ऊपर सिग्नेचर लेके जिसमें प्रपोज बाय, सेकेंडेड बाय, ये उस दिन आप आपका बोर्ड डिक्लेयर करते हो। उस टाइम पे एक्चुअली सार्जेंटम डिक्लेयर नहीं होता है, क्योंकि सार्जेंटम का अपॉइंटमेंट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके मीटिंग में करते हैं। इज द ओनली पर्सन। आज प्रमोद जी के हाथ में ना, ये जैसा बोलते हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मनोज जी आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बात है प्रमोद जी, बताइए। समझ लो आप, उनको उनके हाथ में अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट कोई भी जो सार्जेंट होता है ना, वो मीटिंग कंडक्ट करता है, यानी प्रेसिडेंट का जब भी मीटिंग चालू होता है, अगर प्रेसिडेंट या कोई कुछ अलग बात करे तो वो उसे रिक्वेस्ट करके बोल सकता है कि भाई आप रुक जाइए, आप आगे बात मत करिए। अगर उसका नहीं मानेंगे और उसने थप्पा मार दिया ना, तो वो मेंबर के ऊपर एक्शन लेना बोर्ड को जरूरी हो जाता है। सार्जेंट का पूरा जिम्मेदारी सार्जेंट का रहता है कि प्रॉपर मीटिंग हो रहा है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बहुत सारे क्लब में प्रेसिडेंट कॉलर पहन के बैठता है ना, वो कॉलर भी सार्जेंट पहना था, उसके बाद प्रेसिडेंट मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करता। तो ये बात है ना, ये आपके क्लब बायलॉज में हर एक का रोल। और अगर किसी ने आपसे पूछा था कि ऐसा कुछ एक स्टैंडर्ड है क्या कि इसका जिम्मेदारी क्या है, तो मेरे ख्याल से क्लब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें 5-6 डायरेक्टर का काम क्या होता है वो लिखा हुआ है। इसमें ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, सार्जेंट है, क्लब एडमिन है, बाद में तुम्हारा डायरेक्टर पीआर डायरेक्टर का है। फिर भी नेहा ने बोला है तो नेहा जरूर भेज देगी कि हर एक डायरेक्टर का काम क्या होता है। लेकिन क्लब बायलॉज पे पहला चेक कीजिए प्रमोद जी, रियली कि ये क्लब बायलॉज है, उसके ऊपर एक दिन डिस्कस कीजिए क्लब में कि हम लोग ने अपना क्लब का बायलॉज है, इसमें ये लिखा हुआ है। जब भी आप मेंबर के साथ डिस्कस करोगे तभी तो उनको पता चलेगा कि ये सिस्टम है। वो लोग, तो ये पहला हो गया क्लब बायलॉज, इसके ऊपर पूरी तरह ध्यान दीजिए। उसको पूरा, जैसे आपका एनुअल मीटिंग तो ये प्रेसिडेंट लास्ट ईयर एनुअल मीटिंग तो नहीं होगा क्योंकि आपका 7 महीने पहले का क्लब है, हुआ था प्रमोद जी? नहीं, एनुअल मीटिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अभी इस बार पहला तुम्हारा एनुअल मीटिंग होगा जिसमें नेक्स्ट ईयर के सेक्रेटरी कौन है, क्लब सेक्रेटरी? ही इज नॉट हियर टुडे। अच्छा, वो आने वाले प्रेसिडेंट है, वो आने वाले क्लब के प्रेसिडेंट है ना आपके। जैसा आपने सिस्टम बताया कि जो सेक्रेटरी होता है वो नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट बनता है, ट्रेजरर होता है वो प्रेसिडेंट नॉमिनी जैसा हो जाता है। यस यस यस, राइट। तो पहली बात तो ये जो लीडर बनने वाले हैं ना लाइन में, इन लोगों के मन में ये बात पहले आनी चाहिए कि मेरा क्लब क्या सोचता है, मेरे क्लब के रूल्स क्या है और उसको मुझे कैसी बढ़ावा देना है। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट का आप ये सब्जेक्ट क्यों निकला है, क्योंकि एनुअल मीटिंग मनोज जी आपके साल में होने वाला है। वो मिनट वहां पर बहुत सारा डिस्कशन होएगा और वहां पर जो फाइनल होता है ना, जैसे बोलते हैं ना क्लब के बोर्ड के मिनट्स होते हैं, 1 सेकंड, बोर्ड की मीटिंग मिनट्स होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है ना, ये जनरल बॉडी एनुअल मीटिंग जो होता है दिसंबर के पहले आपको करना है, जिसमें अगले साल का बोर्ड का इलेक्शन होएगा, उनके डिक्लेयर किया जाएगा बोर्ड। जो प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट है वो उसका एक्सेप्टेंस देगा, वो उसके प्लान्स बताएगा, लेकिन ये मिनट होना बहुत जरूरी। और ये जो सब मिनट्स होते हैं ना, उसमें सबसे गहरी बात, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट योर क्लब बायलॉज यू हैव अडॉप्टेड व्हेन क्लब वाज स्टार्टेड। अगर वही बायलॉज आप लोग लेके जाने वाले हो ना, यू हैव टू राइट इन लास्ट लाइन यू हैव अडॉप्टेड द एग्जिस्टिंग बायलॉज एंड गोइंग विद दैट। ये नमूद करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
ये बेसिक है। अगर ये पहले से आप नया क्लब होने का ये एडवांटेज आपको कि पहले से ये प्रोसेस डाल दोगे ना, तो हर एक को पता चलेगा भाई ये तो कर रहे हैं। No, but Next part. seriously, every year we need to amend the bylaws. I don't understand that. Yeah, If required, if required, adopt if required. the bylaws. We are adopting the existing bylaws. Okay. अगर आप okay. चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो अडॉप्ट कर रहे हो ये लिखना भी जरूरी है ना। But every year we have to write, Manoj. Yes, That line. every year you have to Okay. write in your annual meeting, और वो डिक्लेयर भी Shri करना ji- चाहिए कि इसमें कोई चेंज नहीं है, हम लोग एग्जिस्टिंग जो क्लब बायलॉज है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। श्री जी, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं पूछूंगा आपसे कि मेरा इसमें कई बार बहस भी हो चुकी है क्लब में, नॉट अपने क्लब में, प्रीवियस क्लब में, दैट क्लब बायलॉज, वंस यू अडॉप्ट दैट क्लब बायलॉज, then we should send a copy, e-copy or the copy to each and every member. Yes, Is it the protocol? Because in our previous club, whenever I say, then they object on that and they say no, it has to be there with the BOD only, not to the each and every member. no, So no, no, in no. my opinion, that the club bylaws and the MOP copies should reach to each and every member the beginning of the year only, the moment you Yes. adopt the club, not on the Yes. time of OCV, not on the time of OCV. ओसीवी के टाइम पे नहीं होना चाहिए। और क्लब बायलॉज क्या है ये हर एक मेंबर को जानना उसका हक बनता है बॉस। मैं जिस क्लब का मेंबर बन रहा हूँ, इफ आई डोंट नो कि वो क्लब के बायलॉज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो मैं कंफ्यूज होके घूमूंगा ना। यू शुड टेल, रादर आई विल सजेस्ट यू शुड कंडक्ट वन मीटिंग टू डिस्कस ऑन योर एग्जिस्टिंग क्लब बायलॉज। तो इसके कारण लोगों को मालूम होगा कि अपने क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। So that means amendment, if any, amendments, Can if do. any, can be incorporated, and then it can. Yes. अच्छा, become a part of अमेंडमेंट the- अगर करना है, सुनो इसमें प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्लब का अमेंडमेंट अगर आपको करना है, बायलॉज में अमेंडमेंट करना है, तो यू हैव टू डिस्कस इन द बोर्ड जो भी अमेंडमेंट है कि मेरे क्लब का ये बायलॉज था, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं तो ये तरीके से चेंज करें। यू हैव टू सेंड दैट अमेंडमेंट टू द क्लब मेंबर at least 10 days before your club meeting. Any club meeting can be the general body. Okay. But with the notice. और उसमें ये बताइए 10 दिन पहले आपने भेज दिया है कि ये क्लब बायलॉज अपन लोग चेंज करने वाले हैं, उसके ऊपर ये तारीख को इसके ऊपर ये क्लब मीटिंग में डिस्कशन होने वाला है, तो यू शुड अटेंड। वहां पर डिस्कस कीजिए, उसको पास करिए, अमेंड हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर रखने का है। और उस टाइम पे फिर जनरल एनुअल मीटिंग में जो मिनट्स होंगे कि वी हैव अडॉप्टेड दिस बायलॉज, उसका एक एडिशन लगा दीजिए। लेकिन ये बहुत जरूरी, देखो जैसे बोलते हैं ना, आफ्टर द मैरिज वी आर टेकिंग मैरिज सर्टिफिकेट्स। कितनी बार किसी ने देखा है मैरिज सर्टिफिकेट? इसकी जरूरत कब लगती है? Yes, yes. जब भी दोनों जन सोचते कि हम लोग साथ में नहीं रह There सकते। is any problem. हाँ, divorce के time. सिंपल सिंपल सेम क्लब वाले, जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर होना वो बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह काम कीजिए। और आई एम श्योर प्रमोद मिश्रा जी को ये सारे जो सवाल है ना, उन्होंने ये फेस किए हैं कहीं तो ये इसके ऊपर जरूर भर देंगे। प्रमोद, दिस माय रियल दिल से एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जोर लेके बायलॉज प्रॉपर कर लीजिए। चल कर दूंगा, बराबर। अब Yes. उसके बाद ये हो गया क्लब बायलॉज। अभी बजाय बताइए कि अपने को पूरा साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलाना है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल्स किधर किधर होते हैं, किसके किसको होते हैं, क्लब को वो जानना जरूरी है। जैसे आज बोल रहे थे ना कि मनोज जी ने एक सवाल पूछा था कि यार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उसको मालूम ही नहीं था उसने क्या काम करना है, या काम ये कैसे इसको करेंगे। तो ये उनको समझाने का, जैसा बोर्ड मीटिंग फर्स्ट लोगे मनोज जी आप, उसमें ये डिस्कस कीजिए कि व्हाट इज योर रोल। सिंपल बात है, आपको 52 वीक चलाना है। 52 वीक्स हो गए ना एक साल में, 365 डेज में, तो 52 वीक व्हाट आ रहा है सर्टिफिकेट, यू हैव टू टेक वीकली मीटिंग्स, बराबर है। तो लोग सोचते हैं यार मुझे वीकली मीटिंग का पैटर्न कैसा होगा, मैं कैसा करना चाहिए, इसका भी प्रॉपर पैटर्न है वीकली मीटिंग का। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर, अपडेट अबाउट द लास्ट वीक एक्टिविटीज, इफ योर क्लब हैव डन एनीथिंग। उसके बाद अगर गेस्ट स्पीकर है उसके बारे में बात कीजिए। उसके बाद
उसको फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हो जाता है। फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स होने के बाद सेक्रेटरी अनाउंसमेंट में क्या होता है, क्लब के आने वाले इसमें जो एक्टिविटीज है उसका बताइए कि डिस्ट्रिक्ट का एक्टिविटी वो भी बताइए। बाद में आपके क्लब में वो वीक में अगर कोई बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है तो उसका नाम लेके उसको विश कीजिए। हर एक क्लब का अलग अलग तरीका होता है, ऐसा आपका भी तरीका होगा। लेकिन पूरा अगर सोचोगे कि 52 वीक मुझे चलाना है, तो बैठेंगे तो मनोज जी बोलेंगे यार 52 वीक कैसे चलो, मुझे तो सब भागम दौड़ी। ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपका क्लब नया है लेकिन अभी से शुरुआत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होएगा। 4 साल के बाद बहुत मजबूती हो जाएगी। तो शेयर मार्केट जैसा बोला ना प्रमोद जी ने, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आपका शेयर बहुत ऊपर उठाना है तो ये बातें बहुत करना जरूरी है कि जब भी आप मिलते हो तभी यार समझो आज मैं डायरेक्टर मेंबरशिप है या डायरेक्टर यार भैया डायरेक्टर कम्युनिटी प्रोजेक्ट, या मनोज जी कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं या प्रमोद जी कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं या रामकृष्ण अय्यर कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं या कोई मेंबरशिप का लीड ले रहे हैं, जब भी मिलते उसके ऊपर डिस्कस कीजिए, उसको बताइए यार क्या है बताइए, अच्छा ये करना है क्या, चल अपन इसके पास चलते। वो जो चीज होती है ना 52 वीक की, ये मैं बार बार 52 वीक बोल रहा हूँ, आप सोचोगे कि 52 वीक चलाओ कैसे, तो 52 वीक का एक मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। आपको कितना क्लब असेंबली साल में करना है पता है? यू हैव टू डू मिनिमम 4 to 6, इसमें 6 कर दीजिए। प्रभु जी सिंपल फॉर्मूला बता दो, 6 मीटिंग गई 52 में से, उसके बाद दौड़ मीटिंग आने वाले है ये सब, जिसमें एक रोटेरियन आके आपके क्लब के साथ आपके क्लब के नीड के हिसाब से वो रोटरी के बारे में वो सब्जेक्ट पे बात करेगा। वो 6 मीटिंग पकड़ लो, यानी एक अल्टरनेट बंद कर लो, जिस महीने में असेंबली है उस महीने में दौड़ मीटिंग नहीं बनेगी, उसके अल्टरनेट मंथ में दौड़ मीटिंग हो जाएगी, वापस असेंबली आएंगे दौड़ मीटिंग आएंगे, असेंबली आएंगे दौड़ मीटिंग आएंगे, असेंबली आएंगे दौड़ मीटिंग आएंगे। तो महीने का एक वीक तो आपका चला गया इसमें, बराबर है। उसके बाद आपको 4 फैमिली नाइट्स पकड़ लीजिए, फैमिली नाइट्स में कुछ प्रोग्राम रहेंगे आपके, जैसे स्पेशल इवेंट्स पकड़ लो, जिसमें कंपलसरी कौन सा है, ओसीबी है, दूसरा आपका एनुअल मीटिंग है, तीसरा आपका अगर सैटरडे सेलिब्रेशन कुछ अगर होता होगा तो वो हो गया, और चौथा शुक्रिया हो गया। ये आपके 4 तो है ना, तो वो 4 मिक्स कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो कंपलसरी आप आरआई ने बोला है कि 2 छुट्टी आप दे सकते, तो माइनस हो गई। फिर बाद में आपका पिकनिक ये सब कुछ होएगा, वो माइनस कर दो। ये सब अगर तुम इक्वेशन रखोगे ना मनोज जी, तो आपको टोटल महीने में है ना, टोटल साल में अगर आपके पास गेस्ट स्पीकर आपको लेके आना है तो 22 से 23 ही लोग मीटिंग आपको करना है, जिसमें आपको प्लानिंग का जरूरत है, गेस्ट बुलाना, उसको इनवाइट करना। अभी बहुत सारे क्लब जैसा बोलते हैं ना कि बता यार हमारे क्लब का तो आपका स्टैंड अभी 29 है, बराबर है, तो सोचते हैं कि यार एक गेस्ट स्पीकर कहाँ से लाओ, 29 लोगों के लिए कोई बात करने के लिए कोई आएगा, क्योंकि 29 में से यार 4-5 तो कोई आएगी नहीं, तो 20-22 लोग रहेंगे मीटिंग में तो आएंगे, है स्पीकर है। गेस्ट स्पीकर बुलाने का थोड़ा सा आदत डालो, वो भी एक बहुत जरूरी बात काम है। क्यों बताता हूँ कि अगर मुझे बोलोगे ना कि मेरे क्लब में आज एक फलाना फलाना या प्रमोद जी आ रहा है स्पीकर बन के, तो अंदर से मुझे लगता है यार वो आदमी हमारे क्लब के लिए है, तो इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। अभी ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर ये सब एक प्रेसिडेंट बैठने वाला अगर सोचेगा ना कि मेरे को गेस्ट का भी अरेंजमेंट करना है, मेरे को प्रोजेक्ट के ऊपर भी जरा ये प्रोजेक्ट करने हैं तो उसके लिए भी भागना है, क्लब असेंबली अटेंड करना है उसके लिए तैयारी करना है, या मेरे को फैमिली नाइट्स उसका तैयारी करना है, वापस डिस्ट्रिक्ट का फंक्शंस रहेगा उसका तैयारी करना है। अरे यार सोचिए, अगर ये एक ही आदमी अगर सोचने लगेगा तो रहेगा क्या, वो बचेगा, वो भाग जाएगा, कोई आगे आके प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा लोग वो लेके नहीं जा सकते। तो यू शुड अपॉइंट 1, जैसे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना, क्लब डायरेक्टर, उसके अंडर एक कमिटी बनाइए, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा आपका एक लैडर सिस्टम है ना,
एक ट्रेजरर बनने के पहले ना वो आदमी क्लब एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है, ये भी डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डायरेक्टर क्लब एडमिनिस्ट्रेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो अगर 3 लोगों को एक कमेटी बनाएगा जिसमें वो हेड रहेगा, तो वो बाकी के 2 लोग है ना, वो जो आपके बोर्ड में नहीं है लेकिन थोड़े काम करने वाले बंदे अभी आए हैं, उनको साथ में लेके उसको बोलो कि तुम प्लान करो, तो ऑटोमेटिक वो जो नए मेंबर्स है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके बारे में बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जब तक इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक उसको मजा नहीं आएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना, बहुत अच्छी तरह वो निभाएगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं लास्ट वीक मैं मेरे को प्रेसिडेंट को मिला था, रोटरी क्लब अंबरनाथ का मेंबर था। उसने कितने मेरे साल में 15-16 में अंबरनाथ क्लब ने 7 क्लब फॉर्म किए। कितना? एक साल में 7। मैं परेशान होकर उसको पूछा कि अरे भाई, मैं तो परेशान था जब भी तू प्रेसिडेंट है ना मेरे साथ, मैं देख रहा हूँ यार तू 1 2 3 4 5 6 7 क्लब निकाल दे। तो एक्चुअली वो वेटरनरी डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन क्या है, वेटरनरी डॉक्टर। उसने क्या जवाब दिया मालूम है? कि कुत्ते 7 बच्चों को जन्म देती है ना कुतिया, उसमें के 2 मरते ही है लेकिन 5 तो जिंदा रहते। ये मैंने एग्जाम ये हंसने से बात थी, मुझे भी हंसी आई। मैंने यार कुछ भी बात करते बोले हाँ मैंने 7 क्लब निकाले थे, उसमें आज 5 क्लब जिंदा है। सेम थिंग, आप नए मेंबर को लेके आ रहे हो, उसके बाद बात करके आपके उनको अगर इन्वॉल्वमेंट करोगे तो एक आधा शायद ऐसा होगा कि वो शायद कम पड़े, जरूर नहीं। तो उसके लिए ये कमिटी फॉर्म करना स्पेशली फॉर द क्लब एडमिनिस्ट्रेशन। अब सोचिए ना कि अगर क्लब का मीटिंग आपको लेना है, मनोज जी बोलेगा यार ब्रेकफास्ट मंगा है क्या, उसको बताया क्या, अरे वो बेल गांव किधर है, वो लाया क्या, अरे यार इतना उसको फोन किया क्या, वो आया क्या। ये सब अगर प्रेसिडेंट सोचते बैठेगा तो परेशान हो जाएगा। ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लब एडमिनिस्ट्रेशन। क्लब एडमिन, ये डायरेक्टर क्लब एडमिन इज अ वेरी बिग पोस्ट। अगर देखोगे तो बहुत सारे क्लब का ये आया है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, उसमें चेक कीजिए, वो जो क्लब एडमिन रहता है ना, बहुत सारे क्लब में जो बड़े बड़े क्लब है उसमें वो सीनियर आदमी रहता है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है और इससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी आप लोगों और वो कर पाएगा। तीसरा फैक्टर क्या है, जो मैं नए क्लब के हिसाब से, जैसा मुझे आशीष ने बताया था कि यू हैव टू टॉक इन विद द सेंस दैट दिस क्लब इज फॉर्म 7 months बिफोर। लेकिन प्रमोद जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे, अभी भी है, बहुत ही अच्छे। मैंने उसके ऐसा यानी लकी हो आप लोग, जो हंसी खुशी में वो समझा सकते हैं ना, वो मैं नहीं समझा सकता अभी तक। वो बहुत अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये बजट बनता है, ये पार्ट हो गया आपका क्लब एडमिशन में का नंबर 1 वाला। बायलॉज पे ध्यान दीजिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए लोगों के साथ, लोगों को जताइए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वो होने के बाद दूसरा आ जाइए कि आपको पूरा साल चलाना है, वो साल में आप लोगों को किस तरीके से प्लान करना है, वो प्लानिंग के लिए लोगों के साथ बैठिए, एक कमेटी फॉर्म कीजिए, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, नए मेंबर्स को, या असेंबली में डिस्कस कीजिए, तो लोगों को थोड़ा मजा आएगा। क्योंकि पहला बात ऐसा था कि असेंबली भी रखूंगा मैं तो कितने, हाउ मेनी पीपल विल अटेंड, ये भी सवाल आ जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि घर पे जाके, चलो भाई आज मुझे लेके चलो, अरे यार मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, तो लेके चलेगा मेरे को, या मैं तेरे को पिकअप, ऐसा कुछ पूछ के उसको इन्वॉल्व कीजिए। एक बार थोड़ा सा हुक लगना बोलते हैं, रोटरी में वो हुक लग जाएगा ना, तो शेयर मार्केट में आपका शेयर है ना बहुत ऊपर जाएगा, सर्किट ब्रेकर लग जाएगा। और इम्पोर्टेंट बजट, क्लब बजट। अभी आप लोगों ने ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया है, ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया है, ट्रस्ट के लिए अप्लाई किया है? yes we are in process. गुड। तो दो टाइप की चीजें होती हैं आपका। बहुत सारे क्लब में ये चीज मेरे को, मैंने जब भी बात किया है तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि पीपल आर टेकिंग द मेंबरशिप ड्यूज फ्रॉम द मेंबर, एवरी मेंबर इज गोइंग टू पे द मेंबरशिप ड्यूज, राइट। लेकिन मेनी पीपल उनके बजट में उस समय का कुछ पोर्शन क्लब प्रोजेक्ट के लिए प्लान करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बॉस। क्योंकि क्या होता है, ये मेंबरशिप जो ड्यूज है ना, वो मेंबर्स के ऊपर ही खर्चे होने चाहिए।
whatever project you want to do, you should take that money in your trust account. But in case trust is not there, then what should we do? Like, because here also we are making provision of 20% of the fee for the purpose of the project. No, So if it is not right. Because क्या होता है, ये जो हम लोग का रोटरी क्लब है ना, वो अपने इनकम टैक्स का जो दायरा है ना, वो दायरे में ना लोगों के लिए बनाए हुआ क्लब, where you are doing taking the membership fee from the member, for the member, and to the member. Whatever But project you want to do, if we do not have trust, then how to manage that amount? Because if suppose I'm directly asking वो member को सुनो एक इसका जवाब देता हूं मैं, मुझे पता है ये, क्योंकि ये सवाल मेरे को आगे के पहले के असेंबली में डीओपी में भी आ चुका है कि अगर आपका क्लब ड्यू समझो 15,000 रुपए है, कितना है क्लब ड्यू आपका? एनुअल मेंबरशिप चार्जेस कितना है आपके? 17,000 है। अभी 17,000 में आप 20% ये करते हो, मतलब 3,400 रुपए आप प्रोजेक्ट के लिए रखते हो, तो आप क्लब ड्यू देना 14,000 रुपए दीजिए। तो मेंबर को बोलिए 3,000 रुपए है ना, ये आपका, ये जाएगा प्रोजेक्ट के लिए, यू हैव टू पे फ्रॉम दैट अकाउंट। और तुम्हारा ट्रस्ट नहीं है ना, बता रहे हो आप तो प्रोसेस में हो ना। यस, प्रोसेस क्या के लिए? 12 के लिए, ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए। जब तक आपका ट्रस्ट फॉर्म, हाँ, जब तक आपका ट्रस्ट फॉर्म नहीं होता है, तब तक ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा है ना, उसका डायरेक्टली पॉकेट से वो बेनिफिशियरी या वेंडर्स को दीजिए। डोंट स्पेंड फ्रॉम योर क्लब अकाउंट। Sirish, sorry to interrupt. We'll have to wind up because Sharath is also waiting. ओके ठीक है, सॉरी। तो ये बोला बजट में एक ध्यान में लीजिए कि आपका बेसिक ड्यूज जो है वो आपको कंसीडर करना है, यानी जो रिसोर्स से बिल आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्ट्रिक्ट ड्यूज है जो 1,000 रुपीज है, जिसमें 400 और 602 है। और थर्ड तुम्हारा रोटरी न्यूज का है। तो ये होने के बाद आपका क्लब मीटिंग्स का आ जाएगा, और प्रोजेक्ट के लिए जैसा मैंने बताया वो आप अलग से पैसा ले लीजिए। अभी मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम हो गया तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। I know. Yeah, it's a very. Thank you. Whenever you require, I am ready to talk on this subject. शिरीष जी, सिर्फ 2 चीजें मेरे को क्लियर करनी है आपसे। आशीष जी, ओनली Yeah, please. 2 चीजें क्लियर करनी है। एक तो ये है कि अपना डिस्ट्रिक्ट कैलेंडर बन गया है, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान अवर मंथली कैलेंडर। डिस्ट्रिक्ट कैलेंडर अभी तक नहीं बना है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक और कोविड के इसमें कुछ प्लान नहीं कर पा रहे। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज दिस दैट जो वीकली मीटिंग पैटर्न होता है, आई नो दिस थिंग, बट जनरली क्या हो रहा है कि हम बैठते हैं, जनगण मन होता है, राष्ट्र गान होता है, उसके बाद में फॉरवर्ड टेस्ट होता है, और उसके बाद में हम भटक जाते हैं, कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। I will be talking about that. I will be talking about that in my session. Thank you. Yeah. That is part of my session. ओके सर, बात करने आप। थैंक यू शिरीष, थैंक यू। Shirish ji, thank you. This is कभी भी आपको बोला, आप बताइए एनी टाइम, आई विल कम टू योर क्लब, आई विल डिस्कस, लेकिन करिए। Sure. सर आप डीएस हमारे मेंबर कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। Sirish, प्रमोद जी कभी भी बुलाइए, हाजिर है बंदा। Sirish, if you are not very busy, stay with us because I know Sharath's session will be also very lively, and you can also contribute over there if it is required there, right? So यहाँ पर yes. शरद जी है, नेहा चली गई, मैं भी हूँ, और उसके बाद शरद तो पूरा तैयार होके बैठा हुआ है, मैं तो को तैयार होना बाकी है। I have to attend one installation. Okay, so friends, now we'll have training facilitator Sharath Ayal with us, and he will be talking to us on engaging members and also protocols. And he's from a different century because he joined Rotary in 1999. हम लोग तो सब इसी साल, इसी century के join किए हुए हैं। ये 1999 में join किया था Rotary Club Thane Hills, and he's basically into communication skills training. Sorry, Pramod जी, कुछ बोला आपने? मैंने भी उसी साल ज्वाइन किया था। ओह, आप भी मतलब एंशिएंट हैं। So over to you. Unique. आप मनोज क्या बोल रहे हैं? I said he's unique and artifact. Okay, Sharath ji, over to you. Gentleman, I said. I hope I'm audible. Yeah. I hope I'm audible. Yeah. Friends, before I start,
request all those present here, unless you are driving or unless you are not fully dressed, please switch on your videos. I would like to see all of you present. नदीम जी, Sarika ji, Nadeem ji, Namit Bhandari. हमारे पुराने मित्र हैं. We would like to see you because I will not be using a share screen, so there is no problem as far as bandwidth is concerned. Okay. The last two sessions आपने जो अभी सुने, एक one about roles and responsibilities of board of directors and club admin, दोनों बड़े ही technical subjects थे. बहुत सारा उसमें meat है जो, and as you all rightly said, इसको और further discussion में लेना चाहिए. You should have more detailed meetings with the concerned people. What I am talking about today is a more emotional matter, not a technical matter. And I would like to talk to you about that. पिछले 1.5 साल से हमने बहुत कम ट्रैवल किया होगा, और अगर ट्रैवल भी किया है तो एयर ट्रैवल थोड़ा कम हुआ है. लेकिन जिन्होंने कभी भी एयर ट्रैवल अगर किया है तो आपको एक चीज याद होगा कि एयर होस्टेस जो है ना, वो आके कुछ बोलती है, और वो अक्सर हम लोग ना वो एयर होस्टेस क्या बोलती है वो नहीं सुनते, हम लोग एयर होस्टेस को देखते रहते हैं. लेकिन वो क्या बोलती है जरा अगर फिर से ध्यान से सुनो और जरा सोचो, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस वो बोलती है जो हम लोग शायद जितना ध्यान देना चाहिए हम नहीं देते. वो ये है, in case of fall in pressure, the oxygen mask will fall automatically. आपको याद है आशा जी, ये आपने सुना है एयरलाइंस में एयर होस्टेस बोलते हैं आशा जी कि द ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप ऑटोमेटिकली. लेकिन उसके बाद वो कहते हैं प्लीज पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट एंड देन हेल्प अदर्स. अपने ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनिए, उसके बाद दूसरों को मदद करने को जाइए. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रोटरी में बहुत वैलिड चीज है. अक्सर हम लोग जब रोटरी क्लब में मिलते हैं तो हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप रोटरी में क्यों आए हो, आप रोटरी में करना क्या चाहते हो. और अगर मैं आप लोगों को पूछूं, आई एम श्योर आप लोग बोलोगे नवी मुंबई सेंट्रल क्लब क्यों बना है. आप लोग ये कहोगे टू सर्व सोसाइटी. आप लोग चाहते हो कि लोगों को हेल्प करें, दूसरों का मदद करें. बट बिफोर यू डू दैट, यू हैव टू पुट ऑन योर ओन ऑक्सीजन मास्क. यू हैव टू बिकम सेफ एंड सुरक्षित. आप खुद सुरक्षित जब तक नहीं होते तब तक दूसरों की मदद नहीं कर सकते. और ये खुद सुरक्षित होने की बात करने वाला जब मैं बोलता हूं एंगेजिंग योर मेंबर्स, जब तक एक क्लब अपने आप में स्ट्रांग नहीं होता तब तक वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता. एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम 22 years of experience. I have seen many Rotary clubs being formed. Some clubs have grown and have become very successful. Some clubs have stagnated over many years, and some clubs have simply become obsolete. Why? The fundamental strength of a Rotary club is its own members and the bonding between the members. This, for a club that is 7 months old, I would say this should be your very first priority before anything else. But I'm not saying anything else is less important. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाकी चीजें मत करो, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी. How do we keep our flock together? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारा जो ग्रुप है इसको साथ में कैसे रखें. और अगर साथ में रखना है तो everybody has to feel they are part of this organization. छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा. 1999 जब प्रमोद और मैं दोनों रोटरी में आए, उसी साल में कारगिल का युद्ध हुआ. प्रमोद याद है आपको? यस यस. और वो कारगिल का जब युद्ध हुआ ना, तो बरखा दत्त जो टीवी एंकर थे, टीवी शो के होस्ट थे, वो नेशनल डिफेंस स्कूल देहरादून गए थे. और वहां के जो बैच जो पास आउट हो रही थी ना वो साल में,
उनके ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि जो बैच उस साल में 1999 में पास आउट होने वाली, अब खास बात यह है, नॉर्मली जो लोग पास आउट होते हैं उनको कभी कभी 10-12 साल आर्मी में विदाउट सीइंग एनी वॉर, विदाउट सीइंग एनी कॉम्बैट हो सकता है, लेकिन 1999 का जो बैच था वो डायरेक्टली कॉलेज से निकले और सीधे फ्रंट पे गए, डायरेक्ट इनटू द कारगिल वॉर। तो बरखा जी ने ट्रेनिंग ऑफिसर को पूछा कि ये 20-21 साल के नौजवान अपने जान को जोखिम में डाल के किस मोटिवेशन से जाके दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स, दे आर गिविंग देयर लाइव्स इन द वॉर, तो व्हाट इज देयर मोटिवेशन, आप उनको ट्रेन कैसे करते? अब जाहिर है हम लोग सब क्या सोचेंगे कि ये देश प्रेम की बात है, लव फॉर द नेशन, लव फॉर अ लार्जर कॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मीडिया भी हमको यही सिखाती है कि हमारे सोल्जर जो है ये देश प्रेम की वजह से आगे जाते हैं। लेकिन वो जो ट्रेनिंग ऑफिसर थे उन्होंने जो बताया था उस दिन मैं टीवी पे देखा, एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन दिस। ही सेड दैट इज नॉट हाउ द आर्मी वर्क्स। फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। He said that is not how the army works. We train our soldiers, our officers, that their first loyalty is to their own regiment. That your first loyalty is to your brother soldier. Brother soldier and regiment, this is the first loyalty of every officer, every soldier. तो मराठा रेजिमेंट में जो है या गोरखा रेजिमेंट में जो भी हो, तो उस रेजिमेंट में जो लॉयल्टी होता है ना, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी। नाउ वी रोटेरियंस आर पार्ट ऑफ एन आर्मी ऑफ 1.2 million volunteers across the world. We belong to an army. But Rotary Club of Navi Mumbai Central is one regiment in that army. And every soldier inside this regiment, that is every member, must develop the primary loyalty towards the Rotary Club of Navi Mumbai Central and to your fellow members. Your first priority should be to ensure that you know each other very well, that you protect each other first, become very good friends. Only then will you become strong enough to do anything big. बाकी स्कूल में जाके नोटबुक्स अगर बांटने हैं तो आज भी बांट सकते हो, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग यू हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग क्लब. Engaging members, Shirish has also spoken about it, and Neha has also spoken. More responsibilities you give to people, they will become more involved. हो सकता है Namit Bhandari has some ideas in his head. वो उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी उसे दीजिए. मे बी सुरेखा चौधरी हैज सम पर्सनल इंटरेस्ट की, ओके आई वांट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर एरिया. मेरा हुनर, अभी फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अ डॉक्टर. जब भी कोई मेडिकल कैंप्स होते हैं ना, तो आई फील वेरी यूजलेस कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. आई कैन नॉट हेल्प. अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं, अगर मेरे को कोई मेडिकल स्किल नहीं है, तो मैं वहां पे करूं क्या? तो आई फील वेरी यूजलेस. लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ काम दिया जाए जो मुझे सूट होगा, जो मुझे पसंद है, then that member will become involved and the member will become close to the club. Ashish, I'd just like to know, have I consumed my first 15 minutes already? Yeah, around 10 minutes. Yeah. I've got 5 minutes more because I want to then go into the protocols. So I would like to, अभी आपने और एक जो बात बोला ना, जो प्रमोद जी ने सबने रिव्यू की बात की, ये सिस्टम हमारे बोर्ड, हमारे as long as we know the system of Rotary, you will realize ये सब सिस्टम्स पहले से हैं. अगर हर आदमी को काम दिया जाए, डेलीगेशन करना किसी को ये बहुत आसान है. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी को काम दे दो और भूल जाओ. डेलीगेशन का मतलब होता है ये कि you give that person a responsibility, but after that you review that work. If you do not review, there is no delegation. अगर किसी को काम दिया जाए, उसको फ्रीडम भी दीजिए, लेकिन उसके बाद रिव्यू भी कीजिए कि वो काम कैसे हो रहा है. That way, you can be sure of the outcome. At the same time, the concerned member will remain completely engaged.
Now, apart from all the serious work, please remember, let us not just be serious Rotarians, let us also be sincere Rotarians, and let us have some fun. Unless we have fun in Rotary, unless we enjoy Rotary, I will not call another member to join the club. If I am not enjoying it, I will not call anybody else. Namit, can you tell me, will you do that? अगर आप enjoy नहीं करते हो तो आप और एक अपने दोस्त को अपने क्लब में लाओगे? नहीं लाऊंगा. करेक्ट. आशा जी, अगर आपकी किसी दोस्त अगर आपसे बात करे कि रोटरी में क्लब में क्या हो रहा है, तो आप अगर ये बोल रहे हो नहीं यार मैं खुद बोर हो रही हूँ, तो आप नए मेंबर कैसे लाओगे? नए मेंबर अब तब लाओगे जब आप खुद एंजॉय कर रहे हो. And this is a very key. You must enjoy Rotary, only then can Rotary grow. Which means the club, Manoj, Pramod, IPP Vilas, you all have to ensure that your program, your weekly meetings, all that must be enjoyable to people. And when I say enjoyable, उसका ये मतलब नहीं होता है कि उसमें सिर्फ entertainment हो. Entertainment की नहीं बात कर रहा हूँ. All of us seek something. हम लोग सब कुछ ना कुछ चाहते हैं कि हर हफ्ते हम लोग कुछ मिले, तो हमको कुछ नया मिलना चाहिए. I'm sure Ramakrishna Iyer, whatever his, I'm not aware of his qualification, I'm not aware of his classification, but I'm sure there are areas which he would like to know more about. अगर हर हफ्ते ऐसा कुछ हो जिससे रामकृष्णन अय्यर को कुछ एक्स्ट्रा मिले from Rotary, then Ramakrishnan Iyer will want to stay in Rotary. So it is the job of the club leadership, along with everybody's help, to offer something to the ordinary member, a good reason to stay in Rotary. Because service by itself cannot be a reason to stay in Rotary. I am giving you a statement that not all of you may be comfortable with, because I personally believe you can serve the world even without coming to Rotary. Rotary में आने की जरूरत क्या है? आप सर्विस करना चाहते हो तो बाहर भी कर सकते हो. तो Rotary में आने की जरूरत क्या है? रोटरी में आने की जरूरत इसलिए है कि आपका इंडिविजुअल एफर्ट मल्टीप्लाइज बाय 29, क्योंकि आप नवी मुंबई सेंट्रल में 29 मेंबर्स हो, तो अब 29 का स्ट्रेंथ हो सकता है. अकेले तो आदमी कुछ भी कर सकता है, बाहर भी जाके काम कर सकता है, लेकिन क्लब में आया है तो इट मस्ट बिकम वन बॉडी. दैट वन बॉडी स्ट्रेंथ विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ रोटरी. नाउ आई वुड लाइक टू क्विकली मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, which is protocols. Friends, this is a word which is commonly used, but not many of us understand it. Why do we have protocols? What is the reason to have protocols? Quickly, can somebody give me an answer other than Pramod, other than Manoj, and other than Vilas Chaudhary? Any of the members of Thane, of Navi Mumbai Central, could you please tell me, हम लोग protocols क्यों रखते हैं? What is the purpose? So that each member is basically aware of his duties, or at least what is his sphere of influences. Okay. Awareness of one's place. Yes. Anybody else? Can somebody add to me? Why do we follow protocols? What is the point? To avoid confusion. To avoid confusion. Good point, Namit. Manoj, can you now tell me why we follow protocols? That there is a proper understanding among all the members about their roles and responsibilities, and there is no. Okay, hold on. Okay, I think you are all three of you are going slightly off track here. Protocols, first of all, ensure standardization. Okay, all clubs, अगर हम लोग सब अलग चीजें करते रहेंगे तो रोटरी के आइडियल्स को फॉलो करने को मुश्किल होगा. So first of all, protocols allows for certain standardization among. See, there are 37,000 clubs all over the world. All of them are using the Rotary brand. It is necessary that some kind of uniformity is there. So that is one. But the second, for me, the more important part of protocols is that so that all Rotary actions, all Rotary events, all Rotary meetings must have grace and dignity. Grace and dignity comes when we follow certain protocols. For example, today's meeting was called to order by whom?
President. Which president? Current president. Current president. But suppose your DOP, we have been having these DOPs for the last 28 days. Okay, your DOP has come today in July, but the bulk of the DOPs were held in the month of June. And I want to tell you, all the DOPs were called to order by the Josh president, not by the Smile president. Because the meeting was being held in the Josh year, and hence the Josh year president called the meeting to order. Ashish, can you certify this? We followed that protocol. Yeah. Similarly, for example, when we refer to people in our official proceedings, we refer to them by, we attach a prefix to that and say PDG, past district governor or past RI president. That is a mark of respect. It is actually slightly contradictory. On one hand, we say that Rotary में हमारा first name का protocol होता है. I can call Pramod Pramod. I don't have to call him Pramod Ji. I don't have to call him Pramod Sir. And this is regardless of age, by you. You can, even if your fellow member is 70 years old and you may be 25, 35, 40 years old, you can refer. हमारे club में I have got members who are 30 years senior to me. I refer to them by their first name. Badri, Chandru, this is what I call them, though they are very, very senior to me by age. But that's a protocol, first name. Why? Because it helps to foster better friendship. But whenever we use any official language, whenever we write any official letter, or when we speak in an official function, we will use prefixes past president, past district governor, etc., etc., etc. Okay, but that's just part of the protocol. But now, for me, the more important thing is how we conduct our meetings. This was what Pramod was asking some time back. When we conduct our meetings, मैं आपको पहले बोला ना, जो ऑक्सीजन की बात कर रहा था मैं, which you should first take before you help others. I personally believe that the weekly meeting is the air that we breathe. Rotary breathes every week through its weekly meetings. Weekly meetings अगर regularly ना हो, weekly meetings अगर systematically ना हो, मैं मानता हूं वो हमारा श्वास को इफेक्ट करता है, रोटरी के श्वास को इफेक्ट करता है. अगर श्वास इफेक्ट हो जाए तो कोई भी शरीर सर्वाइव नहीं कर पाए. Weekly meetings must be held in a very particular manner. Now, when we say agenda है A, B, C, D, हमको ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये तो हमने already देख लिया कि we have a meeting call to order, national anthem, etc., etc., etc. But for me, the more important part is, does everybody know his role? कौन क्या करने वाला है, क्या उसको मालूम है उसको करना है आज, या आप वो मीटिंग में आने के बाद तय करते हो? कैसे होगा अगर एक मीटिंग में गेस्ट स्पीकर का स्पीच हो गया और सडनली कोई मुझे बोले, अरे शरद जरा वोट ऑफ थैंक्स दे दे, और मैं तैयार ही नहीं हूं? कैसे होगा अगर प्रमोद जी हमारे क्लब में स्पीकर बन के आए, प्रमोद जी का जो इंट्रोडक्शन का जो पेपर है, वो पेपर अगर पहले सर्क्यूलर दिया नहीं गया है और कोई मेरे को बोले कि अरे आपको प्रमोद जी को इंट्रोड्यूस करना है, I should have Pramod's introduction in my hand first. More importantly, वो introduction मैंने पहले पढ़ा होना चाहिए. एक बार एक जॉइंट मीटिंग ऑफ नवी मुंबई क्लब्स में मुझे बुलाया गया 1 साल पहले. मनोरंजन गुप्ता प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से, और उन्होंने मेरे को कहा कि आपका इंट्रोडक्शन भेज दीजिए. तो मैंने कहा मेरे को ये बताओ कि इंट्रोडक्शन करेंगे कौन? तो उन्होंने कहा प्रमोद करेंगे. तो मैंने बोला फिर ठीक है, बिकॉज आई नो कि प्रमोद थोड़ा तकलीफ लेंगे और उसमें कुछ काम करेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे. लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि वो जो इंट्रोड्यूस करने वाले बंदे को ना आखिर लास्ट मिनट में उसके हाथ में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, या फिर कोई प्रेसिडेंट बोलते 1 मिनट मैं अभी तुमको व्हाट्सएप करता हूं. अभी इस तरह का माहौल अगर वीकली मीटिंग में होगा तो क्या होगा? अब जब तक प्रमोद जी थाने हिल्स में आ रहे हैं या शरद एल नवी मुंबई में आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. प्रॉब्लम तब आएगा जब आप किसी गेस्ट स्पीकर को, जो नॉन रोटेरियन आदमी को आपके क्लब में बुला रहे हैं, क्योंकि वो नॉन रोटेरियन के लिए आपका मीटिंग विल बी हिज एक्सपीरियंस ऑफ रोटरी, एंड दैट एक्सपीरियंस ऑफ रोटरी विल बी अ बैड एक्सपीरियंस.
and that is the first step in our public image of Rotary. हम लोग वहीं पे फेल हो जाते हैं. So please have your meeting protocols in place. लिख के रखो, एजेंडा ये है, और हर एक काम जो है, चाहे वो 4-way टेस्ट हो या वोट ऑफ थैंक्स हो या इंट्रोडक्शन हो, कौन करने वाला है उसको पहले बता के. Then your meeting will go smoothly. And then your meeting will also be a healthy meeting, and it will be a fun meeting. So we are all trying to help each club to conduct its meetings well. It is not about paper में लिखा हुआ अगर मैं आपको बता दूं ये प्रोटोकॉल होना चाहिए. That is not the point. Point is आप अगर ध्यान दें कि आपकी meetings entertaining हो, interesting हो, then your members will also have some value from it. Otherwise, it's no fun. Manoj, I'd just like to close with a couple of points. Remember that you have 3 or 4 types of meetings. Manoj, are you there? Yeah, he's there. Yes, yes, I'm there. He's there. You have a regular meeting. Please note, it is not called a regular weekly meeting anymore because Rotary now allows you to have a meeting twice a month. That is your choice, whether you want to have a weekly meeting or twice a month. But it is a regular meeting, which means it has to be held regularly. Regularly also means that it has to be held at a specified date and a specific time and a specified venue. Only then it can become a regular meeting. Now, as of now, we have got Zoom meetings going on, which saves you some trouble. But once, maybe a couple of months, God willing, we will all be meeting regularly physically. So then you must have a very clear timetable. Okay, this is the time, this is the date, this is where we meet. Okay. Now, as Shirish was saying earlier, every weekly meeting is a general body meeting. However, if you want to pass any resolutions, then you have to give due notice of that subject being on the agenda. You cannot suddenly say, "Arey, aaj humko ye important discussion lena hai, isko pass karna hai." You cannot do that. You have to give due reasonable notice. So remember, don't get confused. A weekly meeting is a general body meeting. 2, you have something called a club assembly. 6 club assemblies in a year. Those club assemblies are for the purpose of discussing your club projects and other activities only. And sometimes you may have some sensitive matters to discuss, in which case, please note, club assemblies may you are not allowed to have any outsider present, not even your spouses, unless they are paid up Rotarians. So only Rotarians from your club can attend a club assembly. Okay. Are we clear? Next, you have got the annual meeting, which already has been explained. But the fourth part, which I would like to pay attention to, is your board meeting. The problem here is all the issues which Pramod has mentioned earlier in the session, they arise from one basic problem. The problem is we do not treat our board meetings as business meetings. We treat our board meetings as very casual. A board meeting is a business meeting, must have a clearly stated agenda, minutes must be maintained, and Manoj, as a president, it is your duty to ensure that the agenda that you have given must be covered within the meeting. Nobody in the meeting should be allowed to derail the discussions in such a way that आपका agenda पूरी तरह से complete ना हो. Do not allow anybody to derail a meeting. And have a clear time, business time. अगर आप 1 hour ले रहे हो तो 1 hour में आपका board meeting खत्म होना चाहिए. And most important, keep the minutes. And at every board meeting, 2 subjects must be discussed: membership status and, equally important, income and expenditure. TRF is a different matter. TRF का तो donation है, लेकिन income and expenditure of your club must be discussed at every board meeting. कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने पैसे देने बाकी हैं, and बैंक में पैसे कितने बैलेंस है. This must be formally stated by the treasurer in every board meeting. This way, you ensure that OCV के वक्त आपका भागम दौड़ी नहीं होता. Everything is on the record every month.
Board meetings preferably recommended every month should be held once, and that too on a stated pre-decided date, so that board members cannot say कि हमको मालूम नहीं था board meeting. Follow these processes, engage your members, and you guys will be a strong club. आपका आप चाहे उसको शेयर मार्केट का प्राइस बोलिए या आपका फ्यूचर बोलिए, जो बोलिए, I can assure you your future is bright provided you take care of these basic things today as a new club. Be strong and keep your processes strong, and everything else follows. The good service will follow, the good big side, the increase in membership will follow, the increase in TRF collections will follow, everything will follow. First get this in order. Thank you very much. Great. Thank you, Sharad. Amazing. Thank you so much. Thank you. We had a good learning session. Yeah, Ashish, please. No, I was just saying that it was a very interesting session that we had from Sharath, and nice, very nice. So many things to learn. Yes, Pramod ji. थैंक यू शरद, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया. Thank you. एंड दो क्वेश्चन हैं मेरे पर्सनल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, लेकिन क्लब से रिलेटेड ही हैं. एक तो हम इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर एक जो छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि लाइक जुलाई मंथ शुरू हो गया है. मनोज जी बाय डिफॉल्ट 1 जुलाई से वो प्रेसिडेंट हो चुके हैं, बिल्कुल. और हमारे विलास जी आईपीपी हो चुके हैं. इंस्टॉलेशन हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता है. बट इन द इंस्टॉलेशन व्हेन they will share the dais, who will call the meeting to the order and who will end the meeting? Yeah, Smile president, smile president, no question about it. Smile president, current serving president will call the meeting to order, current serving president will adjourn the meeting. because the same I also agree with your answer, because I also was saying the same thing to our club, but I came like from your Smile team only. Someone said that no, it should be like a meeting called to order by the Vilas ji, and it should be end by that. Absolutely. See, this question can arise only on the night of 30th June. 30th June के रात को आपको ये सवाल आ सकता है. उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई सवाल ही नहीं आ सकता. हाँ, I'll tell you where. Actually, Pramod ji, the issue is not calling the meeting to order. The issue is a caller exchange अगर करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि मीटिंग कॉल टू ऑर्डर बाय मनोज मतलब वो ऑलरेडी कॉलर पहने हैं. करेक्ट? तो फिर कॉलर एक्सचेंज कहां होगा? दिस इज द ओनली इशू. This is the only issue. Okay, call the meeting to order is no question. It has to be Manoj Sarsapan only. Only thing is when he calls a meeting to order, he'll already be wearing the collar. तो फिर collar exchange कैसे होगा? मैं बोलता हूँ this is just a matter of form. कुछ ये मत टेंशन मत करो. Let Manoj just keep the collar there. वो चाहे तो पहना हुआ कॉलर भी दूसरी बार पहना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. It doesn't matter. But meeting to be called to order has to be by the serving president after 1st July, no question about it. And before No that, question. that has to be by the Josh president. If there was an event before 30th of June, Yes, it has yes. to be by the Josh president. My installation, my club installation was on the 26th of July, where the chief guest was the coming RI director AS Venkatesh. Meeting was called to order by Josh president Vijay Yadav. Yeah. Because it was 26th of June. No question about it. I fully agree. आज इस चीज को लेके 1 घंटे बहस हुई है, लेकिन मैं उस चीज से सहमत नहीं था, इसलिए मैंने आपसे वापस बात की इस बारे में. But I only request that see यहाँ पे individual egos का कभी-कभी चक्कर आ जाता है कि मैं करूँगा, वो करेंगे, which is why I come back to the first point. Are you all together? If you are all together, then these things should not matter. If you can be together, then ये छोटी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. But अगर आप ईगो पे ले रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है. That's true. And the second thing, what generally we are facing with our club, because our club is very new. 9 months हो गए, अभी डिलीवर हुआ बोल सकते हैं आप. लेकिन जो मीटिंग होती हैं, वीकली मीटिंग्स, अभी राइटली प्लेस्ड नहीं हुई हैं, ड्यू टू यूज वर्चुअल एंड ऑल. लेकिन जो एक प्रॉब्लम जो हम शुरू से फेस कर रहे हैं वो ये कि जनगण मन होता है, उसके बाद में 4-वे टेस्ट होता है, और उसके बाद में हम भटक जाते हैं. एजेंडा होने के बावजूद भी हम भटक जाते हैं, और वो फाइनली ऐसा लगता है जैसे क्लब असेंबली हो रही हो,
कोई Correct. एक्स बोलता है, कोई वाई बोलता है, कोई जेड बोलता है, तो नहीं, ये मतलब आप गेस्ट स्पीकर नहीं बुलाते क्या? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि पर आप इतना ही एक कीजिए, को आप बुलाया था। नहीं, एक मिनट, मैं आपको सिंपल आंसर देता हूँ, आप गेस्ट स्पीकर बुलाओ, कोई भी गेस्ट स्पीकर जो आपके क्लब के बाहर हो। गेस्ट स्पीकर इसके लिए नहीं बुलाते क्योंकि अटेंडेंस का थोड़ा इशू रहता है अभी नहीं, वर्चुअल में। सुनिए, मैं फिर से आपको, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। देखो, आप रोटेरियन गेस्ट को बुलाइए तो आपको अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोटेरियन गेस्ट 10 आदमी के सामने भी बात करेगा, 4 आदमी के सामने भी बात करेगा। हाँ, वो तो ठीक है, बुक हो गया है। हम तो एक दूसरे को के सारे प्रॉब्लम समझते हैं। करेक्ट, अटेंडेंस का प्रॉब्लम हम लोग सब लोग समझते हैं। आपको तकलीफ तब होगी जब आप एक आउटसाइडर को बुलाते हैं, तब उस वक्त तकलीफ होती है। लेकिन स्टार्ट बाय कॉलिंग रोटेरियन स्पीकर्स बट नॉट ऑन रोटरी सब्जेक्ट्स। प्लीज अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन आई एम मेकिंग। प्लीज कॉल रोटेरियन स्पीकर्स टू स्पीक ऑन नॉन रोटरी सब्जेक्ट्स। यस, तो मजा आएगा। अगर मैं प्रमोद जी मेरे क्लब में आके अगर आप शायरी करो तब मजा आएगा ना। आप प्रमोद जी, आप मेरे क्लब में आके अगर आप टीआरएफ के बारे में बात करोगे तो मेरा तो अटेंडेंस गिरने वाला ही है। मैं जब नवी मुंबई में आया था जॉइंट मीटिंग के लिए, आप कोई बता सकता है, मनोज, कैन यू टेल मी व्हाट वाज माय सब्जेक्ट? स्टोरी टेलिंग, राइट? स्टोरी टेलिंग। मैंने तो रोटरी के बारे में कुछ नहीं बात की। नाउ व्हेन यू हैव अ रोटेरियन कमिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अटेंडेंस। Start calling Rotarians to speak on non-Rotary subjects, Manoj. The moment you have a guest speaker, your agenda will fall in place. Because आपको मालूम है कि 30 मिनट इनको देने हैं। अगर वो आदमी नहीं है वहां पे, तो जैसे प्रमोद जी ने बोला, भटक जाएंगे आप लोग इनटू एंडलेस डिस्कशन। और मैंने तो देखा है कि रोटरी में हम लोग जब डिस्कशंस करते हैं ना, तो अगले इवेंट में बटाटा वड़ा देना है कि सैंडविच देना है, ये चीज पे हम लोग 30 मिनट्स बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ये रोटरी में मैंने देखा 30 मिनट, एक्चुअल लाइव बोल रहा हूँ, 30 मिनट डिस्कशन ऑन वेदर वी शुड सर्व बटाटा वड़ा और सैंडविच। अगर आपको इससे बचना है तो एक आउटसाइड स्पीकर को लेके आओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऑटोमेटिकली हम लोग है ना अपने बेस्ट बिहेवियर पे आ जाते हैं। क्योंकि कोई बाहर से आया और वो बाहर से आया, उसको एजेंडा तो आपकी मीटिंग में से 30 मिनट तो आपको उसको देने ही है, प्लस 10 मिनट्स फॉर क्वेश्चन आंसर्स, तो 40 मिनट तो आपको प्रॉपर एजेंडा में आ गया। इट्स अ बेस्ट वे। अच्छा, जैसे जैसे वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा, लोग मीटिंग्स अटेंड करने के हैबिट में आ जाएंगे, फिर आप नॉन रोटरी स्पीकर्स को बुलाइए बाहर से। दैट इज स्टेप 2 एंड पीपल विल कीप गेटिंग एंगेज स्लोली। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, आई नो कि ये एक ट्रिकी फेज है और ये ट्रिकी फेज में थोड़ा अपने को तकलीफ होना है, बट देखो, हमने नया क्लब फॉर्म किया है, हम जानते हैं क्या होने वाला है, बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। वी हैव टू गेट इनटू दैट साइकिल कि वो क्लब अपने ही मोमेंटम पे चले। एंड मनोज, दिस इज योर चैलेंज ऑफ पुटिंग द क्लब इनटू इट्स पर्टिकुलर गियर। वो गियर में डालना है आपको, और आप ये सिस्टम्स फॉलो करो, गियर में आ जाएगा। ये भटकने वाली जो बात प्रमोद बार बार कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं। ये इसलिए हो रहा है कि अपना एजेंडा क्लियर नहीं है, और एजेंडा में कुछ यही नहीं है ना, बोलते ना, ये जो मीट मसाला है, मुर्गी नहीं है। आपका जो मुर्गी है ना, वो मुर्गी लाओ पहले, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब। थैंक यू सर। All right. So I'd request Pramod ji to give the vote of thanks. शरद जी ने जो पहले बोला वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इट वाज नॉट क्लियर कि हु विल गिव द वोट ऑफ थैंक्स। Yes, I know, but I am not sure if Vilas sir was there. That is why I called you. फॉलो नहीं हो रहा। ऑल ऑफ सडन मुझे जिम्मेदारी दी है। एनीवे, हमारे तो सभी मित्र हैं, जितने भी लोग आए हैं। आशीष जी बहुत करीब हैं यहाँ पर न्यू बॉम्बे में। हम आपको यदा कदा नहीं, हमेशा परेशान करते रहेंगे इस मामलों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो आज क्वेश्चन पूछे, वो कोई भी क्लब मेंबर, मेरी क्लब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्लब मेंबर उसको पर्सनली ना ले। ये क्लब से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनका आंसर शायद मुझे पता भी था, लेकिन मैं क्लब के लिए वो सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि मेरे कई सारे जवाब जो है क्लब के लिए फायदेमंद थे, इसके लिए मैंने पूछे।
और शरद जी तो अपनी लय में रहते हैं, आप काफी प्रिपेयर्ड थे, आप टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटके सर, थैंक यू। धन्यवाद देता हूं। तो किसी भी चीज में सीरियस कैसे होना है वो शरद जी से सीखा जा सकता है। जब हम कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, भले 4 लोग हों, 2 लोग हों, 10 लोग हों, अगर हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कितनी बखूबी निभाना है, वो शरद जी उसके ग्रेट एग्जाम्पल है। आज की बात नहीं, वो हमेशा की बात है। जब भी आते हैं पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। थैंक यू शरद जी, थैंक यू शिरीष एंड नेहा जी, शायद अभी हमारे बीच यहाँ पर इस समय शायद मौजूद नहीं है, उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी सहयोग लगता रहेगा क्योंकि शिरीष जी तो हमारे डीएस हैं क्लब के। एंड मेंबर्स कम थे, हमारी कोशिश है, डेफिनेटली कुछ मेंबर हमसे इस साल अलविदा भी होंगे क्योंकि सब अपनी अपनी उम्मीदों को लेकर आए थे। शायद क्लब उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा या उनकी उम्मीदें यहाँ पूरी नहीं हुई, इसके लिए शायद कुछ लोग नमस्कार जरूर करेंगे। हमें उसका गिला नहीं है, ये होता आया है, हमने बहुत सालों से देखा है। 99 से हम और शरद जी हैं रोटरी में, तो ये सब होता रहा है। लेकिन उसी के साथ कई लोग और जुड़ेंगे। जब हम साथ चलते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं नए मेंबर चिर परिचित टकरा जाते हैं। जैसे आज हम ब्लड डोनेशन कैंप में गए तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को एक पुराने मित्र मिल गए, बातों बातों में उन्होंने हाँ भी कर दिया कि हाँ वो भी क्लब ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से कल हम करजत प्रोजेक्ट में गए थे, वहां 2 सज्जन मिल गए। तो इस तरह से जब कारवां चलेगा, साथ में हम चलेंगे, लोगों से मिलेंगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, लोग रोटरी को समझेंगे और समझेंगे तो आएंगे। पहले जो शुरू में हम लोगों ने मेंबर्स बनाए थे तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग उम्मीदें थी, तो उसमें से बहुत सारे लोग जमा हैं अभी भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। बहुत सारे लोग शायद ना सहमत हो उस चीज से। तो थैंक यू शरद जी, थैंक यू आशीष जैन। आशीष जी आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी हैं और रोटरी आपके अंदर बसती है, मैंने इस चीज को महसूस किया है। रोटरी से आप झगड़ा भी करते हैं। रोटरी से झगड़ा करने मतलब नहीं व्यक्तिगत बात नहीं है कि किसी व्यक्तिगत आदमी से झगड़ा करते हैं, आप अपने आप से ही झगड़ा करते हैं। रोटरी को लेकर इतना जुनून जो आपके अंदर है, यही आपको उकसाता है सही और गलत के को चुनने के लिए। तो आप ये जुनून बनाए रखिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका भविष्य में रोटरी में देख रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपके मार्फत बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो मनोज जी आपको काफी पसंद करते हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है। हम तो करते ही करते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रोटरी में ही। सो थैंक यू शरद जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, वर्चुअली सही, किसी मौके पर इंस्टॉलेशन के दौरान हो सकता है आपसे फिर से मुलाकात हो। थैंक यू ऑल जिन्होंने look forward to this. Thank you so much. Thank you so much. Sir, very enlivening session. Thank you. So I Thank was you, traveling a Ramakrishnan. bit and then I could join later on. I would like to say something to Ramakrishnan as a friend. Now that the meeting is over, this is unofficial talk. Okay. Whenever you are on Zoom, and if you are moving from place to place, please switch off your video. Okay. He was in so that you can listen to all of us. You can see the presentations. But what happens is when you are moving a lot, your camera is continuously unstable. There is constant movement. So we have to see that. So it's like watching a separate movie going on. So it's something that we can avoid. So if you are moving from place to place, you should always keep your own video closed and just keep the session going on so that you can see the presentations and also hear everybody. That's one thing that we should all do, so that all the Zoom pictures that we are seeing, they all remain in a steady position. Just as a friend, a little piece of, just a friendly piece. I would appreciate that he logged in when he was in a auto rickshaw and then he landed at home. अब यहाँ से हमसे बात कर रहे हैं. But it took us all on the same journey. It was a continuation. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everybody. So once again, thank you district officials for being a part of today's session. Thank you, Pramodji, for vote of thanks, and thank you, members as well. With this, I adjourn today's meeting. Thank you. Manoj. Thank you, sir.